my academy, why it has been meant. I know many of you are already aware of my academy, but as and when every week new people are jumping into the session, so I feel that the first 8 minutes I'll take to introduce myself as well as my community. Okay, so let me stop share and again share the. Hope all of you come with an expectation that you'll have a practical session which can help you to understand Panchkarma in a more better way. And of course, I believe that you'll be happy at the end of the session. So coming to my particular session, the purpose, the Ayurveda Academy, which I call it as Ayurveda School of Entrepreneurship. Okay. And why I founded this one? To address this particular problem. The problem, I believe that most of you will resonate with this one. And you people will agree with me that whatever the Ayurveda education has been given in the education institutions, unfortunately, it is not preparing all the students who graduate as a BMS or postgraduate to practice Ayurveda confidently or use Ayurveda to monetize and make their professional career. And because of that, 95% of our students are forced to go for cross allopathic practice. So this, I feel that the education system is broken because of the education system which is not giving even though it is called as a professional course, if we are not able to earn our professional career out of that particular science what we are learning, that means there is a serious problem. And to address this problem, I thought that there should be some solution for that because for every problem there is a solution. And as per me, the solution what I found is that if you give clarity and if you prepare students competent with a competency, definitely they will attract the cash flow. I am speaking about practicing Ayurveda or utilizing Ayurveda to monetize. So for that reason only, I founded Ayurpreneur Academy as well as Ayurpreneur Lifestyle Hub, which can guide them how to monetize Ayurveda with a minimal knowledge of Ayurveda, how our students can be making their career with Ayurveda. That is what, with intention, I started this Ayurpreneur Academy, and under Ayurpreneur Academy, I have started a community building in the name of Ayurpreneur Lifestyle Hub, which is an exclusive community for the Ayurveda professionals. And the strategy is supposed to be a system should be there which can guide our students, our practitioners, our teachers to how they can use their Ayurveda knowledge to earn money or build their own ecosystem which can give them active as well as passive income, multiple streams of income. So that system, what I call, is supposed to be both learning as well as helping them to practically implement it. So I founded this particular Ayurveda business model, which I call it as the MBA of Ayurveda, where whatever I learned from the other mentors of business coaching, entrepreneurship setup coachings, leadership coachings, and even finance. Whatever I learned, I have put it into this course along with Ayurveda basic concepts, how to interpret Ayurveda and how to find the niche. And that is what I call the Ayurveda business model. That is a system what I am creating. I have created it. And it is a flagship course for our Ayurveda Lifestyle Hub. It's a membership which will be lifetime. Okay. Then you need a community, which I call it Ayurveda Lifestyle Hub, which can be supporting each other. Means that will be a platform to get communicating with all our other stakeholders who can help each other to grow together. That is Ayurpreneur Lifestyle Hub. And mentorship should be there because once the college days are over, many of us we miss that guidance. And because of that, I am trying to give a mentorship through this particular what you call the community. So, and I'll be bringing such a stalwarts like Dr. Asif Ali to help you people. Okay. So
The Ayurveda Lifestyle Hub, as I'm speaking, the purpose is to elevate the self-confidence and self-esteem of the Ayurveda professionals. Unfortunately, which we suffer, we don't get it, even though we deserve it. And the vision of my Ayurveda Lifestyle Hub is to empower all the Ayurveda professionals with a concept clear mindset and competent skill set to build Ayurveda entrepreneurship. Even though I'm speaking it is entrepreneurship, it's not that only building a what you call the business around the product or the particular equipment. Even you can explore the clinical practice can be an entrepreneur. It can be entrepreneurship. A chains of hospitals you can make. And I'm on a mission to help 1 million Ayurveda professionals to achieve and live entrepreneurial lifestyle to accomplish the social significance and professional significance, which we miss, financial abundance, time freedom, using my Ayurveda business model. And the Ayurveda business model is integrating all these 7, what you call the streams of Ayurveda career, that is integrated medical practice, pure Ayurveda practice, then coaching and startups, technology-driven Ayurvedic, what you call services or products, researches and publications, authorship, and 7th is the agriculture of the farming, medicinal medicinal plant farming. So what Ayurveda Lifestyle Hub offers is community access. That is what we call a Ayurveda Lifestyle Hub. It has got pre-recorded courses as a part of that community membership, a certification for achieving particular milestones in the community, then coaching, weekly calls as we are attending now, and consultation, one-to-one consultation if a clear means much more clearer guidance is required from myself, from my side or from my team, and collaboration of all the community members. So for that, as I told you, the Ayurveda business model has got its own courses, different courses on different materials which are required to prepare ourselves as a serious professional. Okay, and our community is guarded by the 8 code of honor. Okay, that is conviction in Ayurveda with respect to its principles and results. Okay, so all the ALH members has to have that conviction in Ayurveda. Then only they can be making their career in Ayurveda with the Ayurveda Lifestyle Hub. And clarity, of course, which will be given from our side regarding its concepts of the Ayurveda and strategies, how to monetize your Ayurvedic knowledge, and marketing skills, branding, everything I am trying to give it from my platform. And that we will be helping each other in that clarity. If any of our community members are having the different, what you call the expert in different areas where it can totally contribute in 360-degree involvement or the monetization of Ayurveda for each member of the Ayurveda Lifestyle Hub. And competency to use Ayurveda as a vehicle to create your brand and influence and multiple income sources. And confidence to build the confidence in our ALH members to apply Ayurveda knowledge efficiently to achieve desired goals. Consistency in what you call creating multiple source of income, again using Ayurveda. That is the consistency. Consistently, we should be able to earn money. Okay, that is the code of honor, and collaboration to help each other to have a symbiotic relationship to grow together rather than competing with each other. That is the model of this particular community. That is collaboration, contribution, no competition, and courage to impact the globe with Ayurveda and achieve the social and professional significance, and freedom to live and run your business from anywhere in the world by achieving financial and time freedom, which unfortunately we miss sitting in a physical clinic, isn't it? So that is all about our Ayurveda Lifestyle Hub and Ayurveda Academy. With this particular intentions, we have started. Myself and my wife, Dr. Krishna Pandurang Thorat, she is a co-founder of this particular academy and hub.
and I am Dr. Vivekanand Mohan. Many of you may be knowing, but still I would like to make my name to be remembered, so that because I'm on a mission to help all my Ayurveda fellow members, they should get what they deserve. That is abundance in form of everything. Okay. So let me now call upon that this session is going to blow your mind. And we'll be speaking more much of the practical things. Sir is very much known for his practical approach rather than revolving around a theory. And we'll definitely have Q&A session at the end of the his particular deliberation. Okay. So let me share his particular slide where I would like to introduce him, his particular biodata. Of course, it doesn't require any introduction. Many of you may be his students, but still it is a responsibility to make his introduction as a formality from Ayurpreneur Academy. Okay. So, sir is very well known for his expertise in Kaya Chikitsa and Panchakarma. He is a teacher for many of us, and he completed his BMS from Taranatha Government Medical College, Bellary in the year 1996, and post-graduation from Government Medical College, Mysore, 1999. And then onwards, he worked in different institutions, especially, if I'm not wrong, as much as I know, he first worked in KLE's BM Kankanwadi Medical College, Belagaon. Then he earned a lot of name there. Then he felt that he has to serve his local people. So he shifted to his own place, Atni, uh, I think a taluka place in Belagaon district in Karnataka. And that too before 20 years I am speaking. Because I met him first time in 2001 when there was no any Ayurvedic, what you call the centers in the, at least in the at the taluka level of places. And sir has made an attempt. He has he is a true entrepreneur, as per I know, because he attempted many things. He failed again. He got back. He got up, and again he started. And now he's successfully running his Shifa Ayurvedic hospital. It's a small resort like, okay, hospital, means a wellness center, Ayurveda wellness center Shifa, and he prepares his own medicines uh, for his patients, and he cultivates many of the the herbs what he require for his own medicinal preparations. By that, he is a multifaceted expert of Ayurveda, and I'm happy that he will be giving his particular thought on the importance of Snehapana, its selection, its contraindications, and the specifications with specific reference to the Ashtadasha Mahakushta. Okay, so by this, I request all of you to virtually, you can clap there for his welcome. Okay, I have enabled these chats. Even you can put in the chats. Welcome to him. And Renkaraj Medigar sir, thank you for being in the session. Renkaraj Medigar sir is wishing thank and hi to you, Ashwari sir. Okay, so let not wasting much of time. We'll go with the presentation, and I request डॉक्टर विवेकानंद कुलड़ी, सुनाई दे रहा है आपको? Yes, yes. दिस इज माय फर्स्ट ऑनलाइन टॉक। आई थिंक मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे होगी। ओके, तो टुडेज टॉपिक, आज हमने जो टॉपिक चूज किया था उसका एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड एक 15 डेज बैक डॉक्टर विवेकानंद कुलड़ी का कॉल आ गया। आते ही उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं ओपीडी में पेशेंट देख रहा हूँ। तो फिर उनको लगा कि, उन्होंने कहा सर तुम जो ओपीडी में करते हो वही हमारे लोगों को चाहिए। वो क्या करते हो, वो क्या है एक्चुअली, क्या चीज तुम करते हो, वो एक्सप्लेनेशन करो, हमारे स्टूडेंट्स आयुर्वेदिक फेटर्निटी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ऐसा बोला। तो मैंने बोला कि स्किन डिसीज का मैनेजमेंट तो सब लोग जानते ही है। तो मैंने बहुत से अराउंड
लास्ट 24 ईयर से मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस टाइम पे मेरे गुरुजी को मैं याद करूंगा, वो डॉक्टर ईश्वर रेड्डी सर, वो अभी नहीं रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत डिफिकल्टीज भी हमें झेलना पड़ा है, लेकिन फाइनली मैं एक अंत तक आके रुक गया हूँ कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग पीछे हटते हैं, डरते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या हो रहा है, हमारे जितने भी जो न्यू जनरेशन आजकल हम देख रहे हैं, ये सभी लोग ऑलमोस्ट, जैसा कि विवेकानंद ने कहा कि डॉक्टर विवेकानंद ने कहा कि सभी लोग 95% पीपल्स आर प्रैक्टिसिंग एलोपैथिक मेडिसिन। तो देख लीजिए, आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जो क्रिटिकल केसेस में हम लोग ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी में हम मॉडर्न प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है। लेकिन मेरा सजेशन सभी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को है कि हम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं तो दो प्रकार का प्रैक्टिस होता है। वो जो है वो जो है कि जनरली प्रैक्टिस दो प्रकार का होता है। तो एक शमनौषधि का प्रैक्टिस करते हैं, और एक जो लोग शोधन थेरेपी, जो क्लासिकल आचार्य ने जो बताया है, वो चिकित्सा हम करते हैं। तो जो पर्टिकुलरली द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में जो बताया गया है, आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट चिकित्सा सूत्रास, ये चिकित्सा सूत्रास कई हम हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये श्लोका है, श्लोका इज नथिंग बट मंत्र के जैसा होता है। जैसा कि मैं कहूंगा कि वातोत्तरेसि सर्पिर वमनम श्लेष्मत्तरेषु पुष्टे। कई हमारे स्टूडेंट्स को, न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि ये श्लोकास पर बिलीव नहीं करते। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये श्लोकास ना आचार्यों का एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। उस क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को उन्होंने श्लोका के रूप में लिखा है, बिकॉज तब का लैंग्वेज संस्कृत था। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा। तो तभी जाके हम आयुर्वेदिक साइंस को समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल होती है जब हम पढ़ाई करते हैं, उस टाइम पे ना बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम पर्पज स्टडी करते हैं, आगे फ्यूचर के लिए सोचते नहीं है। तो जो कुछ भी स्टडी किया जाता है वो एग्जाम में पास होने के लिए किया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आज कल मैं अभी जो मेरा जो टीचिंग का मेथोडोलॉजी हो गई है, तो मैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स को दोष के बारे में आइडिया नहीं होता है, धातु के बारे में बिलीव नहीं होता है। तो जनरली लोग ना ये क्या भाई, ये क्या है, ये कैसे समझे, किस प्रकार से समझे, ये अंडरस्टैंड ही नहीं होता है। जैसा कि मॉडर्न साइंस क्लियर है, तो आयुर्वेदिक साइंस में अलग अलग ऑथर्स अलग अलग ओपिनियन दिए है। तो इस टाइम पे ना बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। इसीलिए कि प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फाइनली मैं एक सजेशन या के समझो कि एक कंक्लूजन पे आ चुका हूं कि हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं या स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस करने का एक मेथड जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। और जो पर्टिकुलरली मेरा जो प्रैक्टिस है, डर्मेटोलॉजी पर ही ज्यादातर, जो स्किन डिसीजेस होते हैं, मैं ऑलमोस्ट स्किन डिसीजेस का मैनेजमेंट आयुर्वेदिक से करता हूँ। मेरे पास कितने भी केसेस आने दो, कितने भी डिसीजेस आने दो, वो डिसीजेस मैं, जैसा कि आप जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, जो तो ये तो होगा वाई आयुर्वेदिक फिजिशियंस आर नॉट कॉन्फिडेंट इन प्रैक्टिस। वही बोल रहा था मैं कि हम लोगों को बिलीवनेस नहीं है, यकीन नहीं है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, तो हम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं मॉडर्न साइंस को। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये हमारा मदर साइंस है, तो हम लोग इसको ना यकीन करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ कि आयुर्वेद को किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है। आप सभी जानते हैं, जैसा कि शमनौषधि ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करते ही है, लेकिन चिकित्सा सूत्र जो है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करना पड़ता है, और उस पर एक कंक्लूजन पे आना पड़ता है। चिकित्सा सूत्र देखेंगे तो वो जो प्रैक्टिस है, चिकित्सा सूत्र का जो प्रैक्टिस है,
वो चिकित्सा सूत्र प्रैक्टिस आचार्यों का है। ठीक, तो यहाँ पे मुझे लगता है जितने भी स्किन डिसीजेस हम देखते हैं, बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत से स्किन डिसीजेस आते हैं कि बेसिकली सोरासिस है, विटिलिगो है, एक्जिमा है और बहुत से एलर्जिक कंडीशन के स्किन डिसीजेस हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कुष्ठ देखेंगे तो हम लोगों को क्षुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ सिखाया गया है क्लासेस में। तो एक भी केस लिटरली हम लोग पेशेंट पे देखते नहीं है कि फॉर एग्जांपल ले लो एक कुष्ठ अस्वेदनम महावस्तु यन मत्स्य शकुलोपम, कहाँ पे हमें लक्षण उसको कोरिलेट करके पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं, ये तो हमसे होता ही नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा विचर्चिका कुष्ठ, पित्ताधिक्यम, उग्रकंडो, ऐसे लक्षण देखते हैं। और किटिव कुष्ठ, शावम परुषम किरणकर स्पर्शम किटिवम स्मृतम, अगर ये सभी देखने के बाद हम लोगों को पर्टिकुलर डायग्नोसिस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मेरा एक क्राइटेरिया है स्किन डिसीज मैनेजमेंट का। तो मैं क्या करता हूँ कि मॉडर्न डिसीज ले लेता हूँ और आयुर्वेदिक अप्रोच करता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो आचार्य चरक ने एक हिंट दिया गया है, जो कुष्ठ के जो लक्षण होते हैं, जो समझ लो कि वातज कुष्ठ है, पित्तज कुष्ठ है, कफज कुष्ठ है, इस प्रकार से जो कुष्ठ जो बताया गया है, तो ये जो छोड़ दो, हम किटिव कुष्ठ छोड़ दो, एक कुष्ठ, दद्र कुष्ठ, पामा कुष्ठ, ये हमें कुछ नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, हमें ये मालूम है कि विटिलिगो क्या है, हमें ये मालूम है कि सोरासिस क्या है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस क्या है। हमारे पास ज्यादातर जो भी पेशेंट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट करके फाइनली वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं। तो उस टाइम पे ना हम भी अगर मॉडर्न प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो हमसे समझ लो कि उतना मॉडर्न ट्रीटमेंट हम दे नहीं सकते। तो बेसिकली मुझे ये कहना है आप लोगों से कि मॉडर्न डिसीज ही पढ़ो तुम। तो ये ठीक है, आयुर्वेदिक समझना इट इज गुड, लेकिन आप लोगों को ये जानना है कि मॉडर्न डिसीजेस कौन से हैं। तो जनरली प्रैक्टिस में हमारे पास कितने प्रकार के डिसीजेस आते हैं, ओपीडी बेस पे आप देखेंगे बहुत से, फॉर एग्जांपल एक्ने का केस आता है, विटिलिगो केस है, फंगल इन्फेक्शन के तो इतने केसेस हमारे पास आते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट्रोक्विनोजॉल दे या आयुर्वेदिक मेडिसिन दे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो सभी लोग ऑलमोस्ट 90% जो आयुष डॉक्टर्स है या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है वो सब ऑलमोस्ट मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं। पर्टिकुलरली कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन एलर्जिक कंडीशन ज्यादा है तो हम स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं, एंटीहिस्टामाइन्स भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न को इमरजेंसी में प्रैक्टिस ओके ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक अप्रोच कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सिंपल वे में मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूजुअली आप चिकित्सा सूत्र जानते हैं, जैसा कि वातत्तरेषि सर्पिर वमनम श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु पित्तत्तरेषु मोक्षो रक्त से विरेचनम च अग्रे। डॉक्टर विवेकानंद कुलकर्णी ने बोला है कि ज्यादा थेरेटिकल मत जाओ, प्रैक्टिकली बात करो। तो मैं कहूंगा कि जो वातज कुष्ठ होता है, पित्तज कुष्ठ होता है, कफज कुष्ठ होता है, आचार्य ने बताया है कि यहाँ पर तुम सभी कुष्ठ को छोड़ दो। नेक्स्ट स्लाइड, वहां पे क्लियरली बताया कि वातज कुष्ठ के सिम्टम्स क्या होते हैं, पित्तज कुष्ठ के सिम्टम्स क्या होते हैं, कफज कुष्ठ के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें यही देखना है। फॉर एग्जांपल सोरियासिस आपने लिया, सोरियासिस में सिम्टम्स देखो, साइंस एंड सिम्टम्स देखो। फॉर एग्जांपल ड्राई स्किन है तो हम ड्राई स्किन यूजुअली हाइपर केराटिनाइजेशन होता है, तो यूजुअली हम समझते हैं कि वातज में रुक्षता प्रोड्यूस होती है, दाह युक्त है, बर्निंग सेंसेशन होता है, एरिथेमेटस है, तो जनरली हम समझते हैं कि पित्त प्रोडोमिनेंसी है। उसी तरह समझ लो कि सोरासिस में पस्टुलर सोरासिस है, पस फॉर्मेशन हुआ है, पस फॉर्मेशन हुआ तो जनरली हम क्या समझते हैं कि कफज है। तो ये बेस रखा है मैंने, मेरे पास कौन सा भी केस आने दो जो ऑटोइम्यून डिसीज है, फॉर एग्जांपल समझो कि लाइकन प्लानस है, लाइकन प्लानस आप जानते हैं, शावम परुषम किरणकर स्पर्शम, जो जो किटिव कुष्ठ के लक्षण देखते हैं वही तो हम लाइकन प्लानस में देखते हैं, सोरासिस देखते हैं। तो जो पर्टिकुलरली चरकाचार्य ने बताया है कि
शावता, शावता इज ब्लैकिश कलर, परुषता रफनेस, ये सभी लक्षण हमें देखते हैं। और रोगी का जो प्रेजेंटेशन है तो वो देखने के बाद एक आइडिया हमें आना चाहिए। वो आइडिया ये है कि वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोष वातज है, पित्तज है, कफज है। तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर है। पिक्चर ये क्लियर है कि वातज रहा तो सर्पीपान है, दैट इज स्नेहपान। पित्तज रहा तो विरेचन एंड रक्त मोक्षण। कफज रहा तो वमन। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आचार्यों ने प्रैक्टिस किया था, दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिसीज तुम लोग शमनौषधि कुछ भी लिख सकते हो, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो तुम तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे पास जो तुम्हारी एरिया में जो अवेलेबिलिटीज है, अग्रौषधि जो अवेलेबिलिटीज है, उसके हिसाब से तुम शमनौषधि प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में वात के लिए स्नेहपान बताया गया है, पित्त के लिए विरेचन बताया है, और रक्तमोक्षण बताया है, पित्त से कुष्ठ के लिए। तो यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर कुष्ठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुष्ठ में इन्वॉल्व दोष की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सब लोग ध्यान से सुनना है कि तुम मॉडर्न डिसीज कौन सा भी ले लो, उसके साथ जो रोगी ने जो कंप्लेंट्स आपको बताता है उस कंप्लेंट्स को ऑब्जर्व करो, देन उसकी प्रकृति ऑब्जर्व करो। वो प्रकृति कौन सी है उसके हिसाब से तुम्हें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको कह रहा हूं कि ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दोष बताया गया है। जो आचार्य सुश्रुत ने अलग बताया है वो धातुगत कुष्ठ की चिकित्सा उन्होंने बताया। मैं सिर्फ आचार्य चरक की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो आचार्य चरक ने जो चिकित्सा सूत्र बताया है उस सूत्र को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, तो उसमें आचार्य चरक ने स्पेशली कुष्ठ के लिए एक श्लोका बताते हैं, बहुदोषा संशुद्धि ही पुनः पुनः। तो यहाँ पर ये कुष्ठ जो व्याधि है ये बहुदोष जो व्याधि है, लेकिन एक ही बार शोधन से ये ठीक नहीं होगा। इसको दोष को बहुशो अनुरक्षतः प्राणन, मतलब कि तुम लोग चिकित्सा करते वक्त रोगी का बल को ध्यान में रखते हुए शोधन करना चाहिए। बहुशः अनुरक्षतः प्राणन ऐसा बोला है। कई बार ऐसा होता है कि ये शोधन करने से रोगी वीक हो जाता है, कई बार कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा जो टॉपिक है आज आज मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि रोल ऑफ स्नेहपाना, रोल ऑफ स्नेहपाना इन स्किन डिसीजेस। तो मैं कोई पर्टिकुलर डिसीज की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप जो भी डिसीज आएगा, स्किन डिसीज आएगा, उसमें इन्वॉल्व दोष कौन सा है यही आपको डायग्नोस करना है। तो आचार्य ने क्लियरली बताया कि तुम डायग्नोसिस करते हो ना, सॉरी रोगी की परीक्षा करते हो। रोगी की परीक्षा करते वक्त एक आचार्य ने बोला है, तस्य परीक्षा दोष बल प्रमाण ज्ञान हेतुर्वा। तस्य परीक्षा दोष बल प्रमाण ज्ञान हेतुर्वा। इसका मतलब ये होता है कि जब हम रोगी का एग्जामिनेशन करते हैं, परीक्षा करते हैं, तो हमारा मेन इंटेंशन, मेन गोल क्या होता है कि इन्वॉल्व दोष कौन सा है यही जानने के लिए रोगी की परीक्षा हमें करते हैं। तो यहाँ पर स्किन डिसीज में भी यही क्राइटेरिया को हमें फॉलो करनी है। वो क्राइटेरिया ये है कि कुष्ठ कौन सा भी रहने दो, स्किन डिसीज कौन सा भी रहने दो, उसमें इन्वॉल्व दोष कौन सा है, इतना ही आपको काम करना है। वो क्षुद्र कुष्ठ है, महाकुष्ठ है, ये कुछ भी देखना नहीं है। किटिप कुष्ठ, महाकुष्ठ, बहुत से वैरायटी स्किन डिसीजेस बताए, और मॉडर्न में कहते हैं इन्यूमरिकल स्किन डिसीजेस। तो यहाँ पे वो कौन सा भी स्किन डिसीज रहने दो। फॉर एग्जाम्पल पेम्पिकस वल्गारिस आपने सुना होगा, ऑटोइम्यून डिसीजेस है। ऑटोइम्यून डिसीज है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं कहता हूं कि व्हेन एलोपैथिक एंड्स आयुर्वेद स्टार्ट्स, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास बहुत कुछ रेमेडीज है। तो वो रेमेडीज में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्नेहपान। तो आई थिंक मैं इस अभी जो मीटिंग में जितने भी लोग ज्वाइन हो गए हैं, कई स्टूडेंट्स भी है, कई प्रैक्टिशनर्स भी है, कई इंटर्नीज है, तो तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मेरा जो स्पीच है आज, जो पर्टिकुलरली प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो अभी फील्ड में गए नहीं है, उनको उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो पर्टिकुलरली अडॉप्टेशन ऑफ स्नेहपान किस प्रकार से किया जाता है, मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। तो बेसिकली ट्रीटमेंट आप देखेंगे तो स्नेहो अनिलम हंति मलानम मृदु करोति देहम विनींति संगम, ये आचार्य चरक ने बताया। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि
जब हाइपर केराटिनाइजेशन होता है वातज कुष्ठ में, जो रुक्षता परुषता जो प्रोड्यूस होती है, उसके लिए हमें स्नेहपान करना जरूरी है। तो वातज कुष्ठ के लिए सर्पीपान बताया, ओके। पित्तज कुष्ठ के लिए सर्पीपान करना या नहीं करना है, कफज कुष्ठ के लिए सर्पीपान करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है। तो इंडिपेंडेंटली वातज कुष्ठ के लिए ओनली घृतपान बताया गया है, पित्तज कुष्ठ के लिए विरेचन बताया गया है, कफज कुष्ठ के लिए वमन बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो स्नेहपान इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कार्मोकथा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्नेहपान। आप जानते होंगे कि शोधन पर्पज स्नेहपान करते हैं, शमन पर्पज स्नेहपान करते हैं, देन ब्रह्मण पर्पज स्नेहपान करते हैं। तो मतलब स्नेहपान जो है ये चिकित्सा इंडिपेंडेंट एक ट्रीटमेंट है। शोधन करना है तो भी हम लोग स्नेहपान करना पड़ेगा। अगर शोधन नहीं करते हैं, सिर्फ वातज कुष्ठ है तो शोधन नहीं करेंगे, तो शोधन नहीं करेंगे तो भी हम लोग स्नेहपान करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शोधन के बाद, शोधन के बाद रोगी का बल क्षय होता है। जनरली आफ्टर शोधन दुर्बलता, कृष्यता, ये लक्षण रोगी में दिखते हैं। तो यहाँ पर तभी भी आचार्य ने बताया, कर्मणाम ओमनादि नाम पुनरपि अंतरे अंतरिच स्नेह स्वेदो प्रयोजनते बलाय च। रोगी का बल प्राप्त करने के लिए स्नेहपान करना है, शोधन के लिए भी स्नेहपान करना है। इंडिपेंडेंटली स्नेह को एज ए शमन रूपी स्नेहपान यूज करना है। आई थिंक मेरी बातों को तुम लोग शायद समझ रहे होंगे। स्नेहपान को तीन प्रकार से यूज करते हैं, एक नरिशमेंट के लिए, एक प्यूरिफिकेशन के लिए, एक सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए। ये तीन प्रकार से स्नेहपान किया जाता है। तो स्नेहपान अगर नहीं है, स्नेहन चिकित्सा हम नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिले। आप देख लो, बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुझे लगता है जो शमनौषधि प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, कई बार क्या हो जाता है कि स्नेहपान अ, स्नेह के बिना चिकित्सा करते हैं, स्नेह के बिना चिकित्सा करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो स्नेहपान कराएगा उसे ही रिजल्ट मिलेंगे। और ज्यादातर हमारे लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि बहुत से लोग ना स्नेहपान का जो टेक्निक है वो पता नहीं है। तो समझते हैं स्नेहपान मतलब घी पिलाना, राइट, ओके। ऐसे तो हम चार प्रकार के स्नेह यूज करते हैं, घृत, तैल, वसा, मचा। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बात करूंगा तो ज्यादातर दो स्नेह हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं। वो जो है पर्टिकुलरली घृत और एक तैल। और घृत मेजॉरिटी प्रैक्टिशनर्स घृत को ही चिकित्सा के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे शमन रूपी चिकित्सा, शोधन रूपी चिकित्सा और ब्रह्मण रूपी चिकित्सा, ये तीन प्रकार की चिकित्सा मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा प्रैक्टिस करने का जो बेस है, वो बेस जो है चिकित्सा सूत्र ही है। सूत्र को ही प्रैक्टिकली मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेट यानी एक डॉग था, उसका नाम बोल्ट था। उसको एलर्जिक डर्माटाइटिस हुआ। एलर्जिक डर्माटाइटिस हुआ। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वेटरनरी सब्जेक्ट बोल रहा है, लेकिन मुझे ये फैक्ट मैं जानता हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसको एलर्जिक डर्माटाइटिस प्रॉब्लम था। मैंने बहुत वेटरनरी डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसको 2-3 बार मैंने ट्रीटमेंट करवाया, स्टेरॉइड्स दिए, एंटीहिस्टामिन्स दिए, बहुत कुछ ट्रीटमेंट किया। फिर फाइनली मेरे दिमाग में एक बार ये आ गया कि क्यों हम इसको घृत से ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसको भी मैंने ट्राई किया। लिटरली बताता हूँ, शमन रूपी स्नेह से उस पेट पे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आने लगा कि मेरे प्रैक्टिस में जो भी स्किन डिसीज का पेशेंट आता है तो मेरा प्रैक्टिस स्नेह के साथ ही होता है। एक बात आपसे मैं और एक बात शेयर करना चाहता हूं। अगर तुम स्नेहपान कराना चाहते हैं तो उसके कई रूल्स होते हैं, वो रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, स्नेहपान कराते हैं तो ब्लाइंडली हम स्नेहपान करेंगे तो क्या होता है, हम घृतपान कराते हैं, घृत को इनडायरेक्टली हीट करके हम पर्टिकुलरली मॉर्निंग आवर्स में पेशेंट को घृतपान कराते हैं। तभी होता क्या है, स्नेह जब पिलाते हैं तो स्नेह का क्या होता है, अजीर्ण हो जाता है। उसी दिन रोगी को स्नेहपान करते हैं, उसी दिन इवनिंग पेशेंट को क्या होता है, लूज टूल्स होने लगता है। ये लूज टूल्स जो होता है ना,
ये अधस्त स्नेह दर्शन नहीं है, ये सम्यक स्निग्ध लक्षण नहीं है। यहाँ पर हम लोग ये समझना जरूरी है कि स्नेहपान के पहले आम पाचन और अग्निदीपन करना बहुत जरूरी है, ये हम मिस कर देते हैं। आम पाचन चिकित्सा बहुत कम लोग करते हैं स्नेहपान के पहले। मेरा ये सजेशन है और मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे अनुभव हुआ है। जिस रोगी को हम विदाउट आम पाचन स्नेह को पिलाते हैं, वो स्नेह डाइजेस्ट नहीं होगा, वो स्नेह अजीर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें फेल्योर हो जाते हैं। एक बात ध्यान से समझ लो, क्योंकि स्नेह जब बॉडी में डाइजेस्ट होना है तो उसके लिए हमारा अग्नि बल प्राकृत रहना चाहिए। अग्नि को पहले प्रदीप्त करने के लिए पहले हम आम पाचन करेंगे, आम पाचन करेंगे, उसके बाद अग्निदीपन करेंगे। तो प्रैक्टिकली मैं पेशेंट को फर्स्ट विजिट में करता हूं कि जब भी मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं कुछ शमन औषधि उसको प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा। मेरा टारगेट होगा उस रोगी का स्नेहपान कराने। शोधन के लिए तो स्नेहपान करेंगे, अगर पेशेंट शोधन नहीं लेना चाहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सामान्य चिकित्सा करेंगे, जैसा कि शमनौषधि हम देते हैं। इसीलिए शमनौषधि देने के पहले भी आम पाचन करना जरूरी है, स्नेहपान करने के पहले आम पाचन अग्निदीपन करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस में फेल्यूर इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग गलत इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं है कि पाचन दीपन के बिना स्नेह डाइजेस्ट होता नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने बताया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नि सुतरा मुद्राणि च। तो जो भी डिसीज के लिए, नॉट ओनली स्किन डिसीज, जो भी डिसीज के लिए आपको बेसिकली ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले जो रूल कहता है आयुर्वेदिक में, पहले आम पाचन करे, देन अग्निदीपन करे, उसके बाद तुम स्नेहपान पे जाना चाहिए। तो स्नेहपान 3 प्रकार का होता है, मैंने बताया। तो यहाँ पे ये बात मैंने क्लियरली बता रहा हूं, सब लोग जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्नेहपान के पहले प्रैक्टिकली 3 to 5 डेज हिंगवाष्टक चूर्ण, जीरकादि चूर्ण, अग्नितुंडी वटी, कुछ भी जो पाचन दीपन के जो भी ड्रग्स आपके पास अवेलेबल है, उन ड्रग्स को आप स्नेहपान शुरू करने के पहले 3 to 5 डेज अडॉप्ट करना ही है। उसके बाद तुम लोग स्नेहपान पे जाना चाहिए। स्नेहपान जो होता है, अगर तुम शमनांग स्नेहपान, शमन पर्पस, सिम्टम्स को सबसेट करने के लिए देते हैं, तो आचार्य ने बताया है कि थोड़ा ध्यान से सुनो सब लोग। अब देखो, जनरली स्नेहपान शोधन के लिए हम बात करते हैं, आरोहण क्रम स्नेहपान की बात करते हैं, आरोहण क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे देते हैं। तो 30 ml दिया, 60 दिया, 90 दिया, 110, ऐसे हम देते हैं। कितने दिन तक देते हैं? शास्त्र में लिखा गया है कि त्रिरात्रम च सप्तरात्रा, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 7 डेज स्नेहपान करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में ये होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता है कि हम लोगों को जो आचार्य ने जो बताया है, तो उनके जमाने के जो जो रोगी थे उनके लिए ये शेड्यूल बताया गया, लेकिन ये जो जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं, उन लोगों का अग्नि उतना स्ट्रांग नहीं है। प्रैक्टिस में मैं जो ऑब्जर्व किया हूं, 3 to 5 डेज में सम्यक स्निग्ध लक्षण दिखते हैं, 3 to 5 डेज में दिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे प्रैक्टिस में, मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी किया था, मैंने 11th डे तक स्नेहपान किया था। ये बात ध्यान रख लो, कई लोग कहते हैं कि 7th डे के बाद स्नेहपान नहीं करना चाहिए। तो ये बात क्लियरली वाग्भट आचार्य ने बता दिया है कि डेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप स्नेह को अप टू सम्यक स्निग्ध लक्षण दिखने तक एक्सटेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कोस्ट। कोस्ट के अनुसार मृदु कोस्ट है तो 3 डेज स्नेहपान, मध्यम कोस्ट है 5 डेज स्नेहपान, क्रूर कोष्टी है तो 7 डेज स्नेहपान करना, ऐसा बताया गया है। लेकिन आचार्य वाग्भट कहते हैं त्रिरात्रम से सप्तरात्रा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, क्योंकि अगर 7th डे आपको सम्यक स्निग्ध लक्षण नहीं दिखेंगे तो आपको फिर से स्नेहपान कंटिन्यू करना पड़ेगा। कितना कंटिन्यू करना पड़ेगा? जो डोज तुम डेली बढ़ाते जा रहे हो, वो डोज को ही बढ़ाते जाना चाहिए। कब तक बढ़ाना चाहिए? बॉडी में जब तक स्नेह के स्निग्ध लक्षण दिखते नहीं है, तब तक स्नेह को तुम्हें बढ़ाना चाहिए। तो ये हुई बात आरोहण क्रम की। लेकिन जब तुम शमन रूपी स्नेहपान करना चाहते हैं, जैसा कि जो समझ लो कि बहुत से पेशेंट फंगल इन्फेक्शन के लिए बात करता हूँ, बहुत से पेशेंट को 3 months 6 months का ड्यूरेशन इट्राक्विनोजल का दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पे उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो लोग थक जाते हैं, फाइनली कहते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो मैं कहता हूँ बेस्ट ट्रीटमेंट स्नेहपान से हम कर सकते हैं। तो ये स्नेहपान चिकित्सा जो है ना, वो अडॉप्टेशन के मेथोडोलॉजी आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। उसमें अगर कुछ गलती करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। उसको कहते हैं व्यापत। व्यापत तो होते ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन गलत तरीका अडॉप्ट करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो फाइनली हम लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक में कुछ रिजल्ट नहीं है। एक्चुअली ना, मैं कहता हूं कि हम गलत है इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो तुम सही तरीके से जो मेथड आचार्य ने बताया उसी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि तुम्हें रिजल्ट मिलते ही है, क्योंकि वो आप्तोपदेश है। वो कभी झूठ नहीं होगा। वो आचार्यों को तभी उनके जमाने में उनको उनके पेशेंट्स को उनको रिजल्ट मिला था, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि उसमें रिजल्ट मिलते हैं। तो हम रॉन्ग अडॉप्टेशन, गलत तरीके से स्नेहपान को अडॉप्ट करेंगे तो स्नेह से बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और मैं अभी इन ब्रीफ आप लोगों को स्नेहपान शमनांग बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो। ओपीडी बेस पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए रूल नंबर 1, ओपीडी में अगर पेशेंट आपके पास आता है, आने के बाद कंप्लेंट्स बताता है, तुम डायग्नोस करते हो जो भी डिसीज हो, लेकिन हमारा डायग्नोसिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोष कौन सा है इसको ध्यान में देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चिकित्सा का प्लान करते हैं। वो पेशेंट कहता है कि मुझे शोधन चिकित्सा नहीं चाहिए, क्योंकि वो शोधन चिकित्सा के लिए तुम लोगों को अलग से सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग ओपीडी बेस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ओपीडी बेस पे यूजुअली प्रिस्क्रिप्शन तो हम देते ही हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन में स्नेह के बिना तुम चिकित्सा नहीं होगी। याद रखो इस बात को, स्नेह पान करना जरूरी है। स्नेह से ही कई डिसीजेस, सोरियासिस, पर्टिकुलरली सोरियासिस, मैं कहता हूँ हाइपर केराटिनाइजेशन जो हो रहा है वो इमिडिएटली विद इन 3-4 डेज में कंट्रोल में आता है। ये मैं बहुत से केसेस को ट्रायल किया हूं और मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ओपीडी बेस पे तुम स्नेहपान करना चाहते हैं, नंबर 1 पॉइंट। यहाँ पे ओपीडी बेस पे तुम स्नेहपान करना चाहते हैं तो तुम लोगों को मेरा सजेशन ये है कि तुम लोग स्नेहपान करने के पहले 3 to 5 डेज या 7 डेज, यहाँ समझो कि अप टू आम पाचन के लक्षण देखने तक। आम पाचन के लक्षण में ब्रीफली मैं बताऊंगा। तो नंबर 1 क्षुधा प्रवृत्ति, अग्निदीप्ति, शरीर में लघुता और मल प्रवृत्ति, इतना ही बस। इतने लक्षण अगर रोगी में देख रहे हैं तो बस स्नेहपान शुरू करनी चाहिए। ये लक्षण 3 दिन में दिखेंगे, 2 दिन में दिखेंगे या 5 डेज में दिखेंगे, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट पर। तो यहाँ पे पाचन दीपन औषधि के लिए मैं जनरली त्रिकटु चूर्ण, शुंठी मरीच पिपली त्रिकटु चूर्ण प्रैक्टिस में मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ। हाफ टी स्पून विथ 100 ml ऑफ हॉट वाटर के साथ सुबह उठने के बाद ब्रश करके पिलाना है। उसके बाद वो जब क्षुधा प्रवृत्ति होती है, क्षुधा प्रवृत्ति शायद इस बात को तुम समझ रहे होंगे, जब उसको हंगर फील होता है तब यूजुअली पेशेंट ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है, तो उस टाइम पे ही यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है उसको। क्षुधा काले मध्यम मात्रा शिष्यते कहते हैं हम उसको। क्षुधा काल समझ लो कि 8:30 9 o'clock उसको हंगर होता है, खाने का मन करता है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, तो उस टाइम पे ना तुम लोग, प्रैक्टिकली बताऊंगा, मध्यम मात्रा बताया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 ml स्नेह, जो पर्टिकुलरली जो स्किन डिसीज के लिए अगर जाएंगे पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत और गुगुल घृत, इन तीनों में से एक घृत को आपको चूज करना है, उसको इनडायरेक्टली हिट करना है। और इसमें यहाँ पर कितना आप ले लो, 10 ml विथ हॉट वाटर बिफोर मील। उसी तरह इवनिंग क्षुधा काल जब होती है उससे पर क्षुधा काल में आहार नहीं देना है, वहां पे उसको स्नेहपान कराना है। थोड़ा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है लेकिन ये फॉलो करना पड़ता है। ये फॉलो नहीं करते हैं इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फॉलो करना जरूरी है। बेसिकली नंबर 1 मैंने क्या बोला कि पाचन दीपन करना है, निराम लक्षण को देखना है, उसके बाद स्नेहपान शुरू करनी है। स्नेहपान फॉर शमन पर्पस, सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए। जैसा कि हम शमनौषधि देते हैं, वो शमनौषधि कुछ भी नहीं देनी है, ओनली स्नेह को देना है, क्षुधा काल में देना है। आज शायद आप समझ गए होंगे, क्षुधा काल मतलब जब रोगी को हंगर होता है
उस टाइम पे फूड नहीं लेना है, उसको बदले में उसको एक आधा ग्लास गर्म पानी लेना है, उसमें 10 ml स्नेह को मिक्स करके पीना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोगी को बता देना है कि स्नेह जब तक डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक आहार नहीं लेना। शायद इस बात को समझ गए होंगे। समझ लो कि 9 o'clock रोगी को भूख लगती है, भूख लगने के बाद तुम क्या करते हो, स्नेहपान करने के लिए बताते हो, स्नेहपान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेह डाइजेस्ट होने तक उसको आहार नहीं देना चाहिए। शायद मेरे बात को तुम समझ गए होंगे। स्नेह जब डाइजेस्ट हो जाता है उसको जीर्ण लक्षण कहते हैं। जीर्ण लक्षण में क्षुधा प्रवृत्ति होती है, तृष्णा प्रवृत्ति होती है, शुद्ध उद्गार होता है, ये सभी सिम्टम्स हम देखते हैं। उसके बाद रोगी को आहार देना चाहिए और पर्टिकुलरली लघु आहार एडवाइस करना चाहिए। मेरी बात चल रही है शमन रूपी स्नेहपान के लिए बात कर रहा हूं मैं। ओपीडी बेस पे प्रैक्टिस करने वालों को मेरा ये सजेशन है, तो इसमें तुम्हें जबरदस्त रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह मॉर्निंग डोज हो गया, इवनिंग डोज भी ऐसे ही करना है। जब क्षुधा काल होता है, क्षुधा काल 6:37, 7:30, 8 o'clock तक हो जाता है, तभी तुम क्या करना है, वही जो मॉर्निंग डोज दिया था उसी प्रकार से तुम यहाँ पे स्नेहपान करना होगा। स्नेहपान करने के बाद स्नेह डाइजेस्ट होना है, डाइजेस्ट होने के बाद आहार देना है। अदरवाइज मैं बता देता हूँ क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो स्नेह डाइजेशन होने के पहले अगर तुम आहार दे देंगे तो वो आहार अजीर्ण हो जाता है, स्नेह अजीर्ण हो जाता है। अधस्त स्नेह दर्शन मतलब पेशेंट लिटरली बताता है कि डॉक्टर साहब लूज टूल्स हो रहे हैं, लूज टूल्स हो रहे हैं। कि तुम्हें ये समझना है कि लूज टूल्स ये इंडिकेट करता है कि डे 1 डे 2 में ये इंडिकेट करता है कि स्नेह प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पे गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि हम रोगी को बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए कि स्नेह जब तक डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक हमें आहार नहीं देना चाहिए। आई थिंक ये शमन रूपी स्नेहपान तुम लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और एक बार मैं कन्विंस करूंगा कि स्नेह पान करने के पहले पाचन दीपन करना जरूरी है। पाचन दीपन के लिए मैंने बोला 3 to 5 days स्नेह पर्टिकुलर औषधि देना पड़ेगा, जैसा कि जीरकादि चूर्ण है, सुबह और शाम खाली पेट से उसको देना है। उसके बाद 3-5 days के बाद नेक्स्ट स्नेहपान शुरू करनी है। उस स्नेहपान कितने दिन तक देना है, क्वेश्चन आता है कितने दिन तक, जब तक सिम्टम्स सबसाइड नहीं होते तब तक देना। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन पेशेंट्स आपको पूछेंगे, जो प्रैक्टिस नर्स है उन लोगों को मैं ये बात बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है जो एजुकेटेड पीपल्स तुम लोगों को क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब इतना घी पिला रहे वो कि हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। जनरली ये लोगों को गुरुत्व समझता है, घी पीते हैं, घी पीने के बाद जनरली लोग सोचते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। वो क्लियरली बता दो कि ये मूर्छित घृत है, संस्कारित घृत है, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, क्योंकि हमने मूर्छन किया है। घृत मूर्छन करके ही हम घृत को यूज करते हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने के लिए तो हम मूर्छन प्रक्रिया करते हैं, राइट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओपीडी बेस पे आप लोग यहाँ पे स्नेहपान को शमन रूपी स्नेहपान कहते हैं। कुछ शमनौषधि देने की जरूरत नहीं है। स्किन को सॉफ्ट बनाना है, मॉइस्चराइजिंग करना है, तो हम जनरली क्या करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस देते हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनली सूदिंग करना है। इंटरनली सूदिंग के लिए शमन रूपी स्नेहपान करना बहुत जरूरी है। बहुत से पेशेंट आपसे मिलेंगे ड्राई स्किन के, ड्राई स्किन के बहुत से डिसीजेस होते हैं, तो यहाँ पे इवन इंक्लूडिंग डैंड्रफ भी आप देख सकते हैं। सोरासिस की इतने वैरायटीज है, पस्टुलर सोरासिस, गटेड सोरासिस, पामोप्लांटर सोरासिस, एक्जिमा, और मैं बताता हूँ ये सभी ड्राई ड्राई स्किन के डिसीजेस है। इन डिसीजेस में आचार्यों का इंस्ट्रक्शन ये है कि वातत्वरेसी सर्पी। तो समझ लो ये शमन रूपी स्नेहपान की बात कर रहा हूँ। शमन रूपी स्नेहपान 10 ml मॉर्निंग, 10 ml इवनिंग विथ हॉट वाटर बिफोर मील। एट बिफोर मील मतलब क्षुधा काल में, क्षुधा काल में। जब ये 10 ml स्नेह डाइजेशन होने के लिए 1 hour होगा, 2 hour होगा या 3 hours होगा, 10 ml स्नेह डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग उसको उसके हिसाब से आपको फूड एडवाइस कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपको शमन रूपी स्नेहपान की। अगर कुछ भी डाउट्स है तो लास्ट सेशन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चंस है तो नोट करके रख लो, लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। देन शोधन पर्पस, ये देख लीजिए, ये स्नेहपान जो है शोधनांग स्नेहपान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस करने के लिए
तो मैं कहता हूं कि ये एक पंचकर्म सेटअप करना पड़ता है। ओपीडी बेस पे ये नहीं चलेगा। बहुत से प्रैक्टिशनर्स शोधन रूपी स्नेहपान करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। वो गलतियां भी मैं आपसे बताता हूँ। पेशेंट को स्नेहपान करके अपने घर भेज देते, टोटली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्नेहपान करते हैं शोधन पर्पस। ये शोधन पर्पस स्नेहपान करते हैं, तो आचार्य ने क्लियरली बताया कि पेशेंट शुड बी आईपीडी, इन पेशेंट करके ही हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर तुम पेशेंट को स्नेहपान करके, क्योंकि हस्तने जीर्णे एवं अन्य स्नेहो अच्छा बहु, या आप यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनो। शमन रूपी स्नेहपान के लिए हमने कितना क्वांटिटी दिया? 10 ml दिया बस, वो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ शोधन पर्पस तुम स्नेहपान करते हो, शोधन मतलब चाहे वमन करो या विरेचन करो, तो उससे पहले पूर्व कर्म चिकित्सा जो की जाती है, वो पूर्व कर्म चिकित्सा में हमें शोधनांग स्नेहपान करना पड़ता है। शोधनांग स्नेहपान करने के लिए मात्रा जो होती है बहुमात्रा कहते हैं। बहुमात्रा मतलब आचार्य ने बताया कि लार्ज क्वांटिटी मात्रा, उत्तम मात्रा कहते हैं। स्नेह विच डाइजेस्ट फॉर 24 आवर्स, आप ये इस बात को भी समझना है। तो ये थोड़ा थेरेटिकल चला गया, तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऋषि ऐसी मात्रा से स्नेहपान शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे ऋषि ऐसी मात्रा यूजुअली होता है 28 ml to 30 ml स्नेह। हम टेस्ट डोज भी कहते हैं इसको। क्यों टेस्ट करते हैं? कि उसका कोस्ट कौन सा है जानने के लिए कोस्ट असेसमेंट करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, त्रिरात्रम से सप्तरात्र, 3 दिन से लेके 7 दिन तक स्नेहपान करना, ये इंस्ट्रक्शन आचार्य ने दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये जानना जरूरी है कि वो कोस्ट कौन सा है। कोस्ट ऐसे तो सब लोग जानते हैं, मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ है। क्रूर कोष्ठ के लिए 7 डेज स्नेहपान किया जाता है, मृदु कोष्ठ के लिए 3 डेज, मध्यम कोष्ठ के लिए 5 डेज स्नेहपान किया जाता है। ये सभी लोग एग्जाम में थ्योरी में इसी प्रकार से लिखा हो। लेकिन मैं प्रैक्टिस में बात करता हूं, तो अभी के जनरेशन में जो हम स्नेहपान कर रहे हैं, आरोहण क्रम से स्नेहपान कर रहे हैं, वो ये शेड्यूल उसमें फिट होता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सोचना होगा कि हम प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो कोस्ट तो डिसाइड करनी है। यहाँ पे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 मैं बताता हूँ। स्नेहपान करने के बाद पेशेंट सडनली वोमिट कर लेता है, वोमिट हो जाता है। वोमिट होने के बाद क्या करना? उसी दिन स्नेहपान करना है या नेक्स्ट डे स्नेहपान करना है? वो वोमिट क्यों हुआ है उसका कारण समझना है। डोज में वेरिएशन हो गया, पोस्ट असेसमेंट में कुछ गलती हो गई, ये सभी सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर तो तुम डेज छोड़ दो, डेज पर ध्यान मत दो। डेली 20 to 25 ml डोज बढ़ाते जाओ। फॉर मेल पेशेंट 25 ml पर डे बढ़ाते जाइए। फॉर फीमेल पेशेंट 15 to 20 ml डेली बढ़ाते जाइए। मतलब आरोहण क्रम से स्नेहपान करते जाइए। कब तक करना चाहिए? बॉडी में सॉफ्टनेस आने तक। मतलब कि अगर मॉडर्न साइंस में कहूंगा कि सेलुलर लेवल पे स्निग्धता बॉडी में आना चाहिए, तो ये जो फैट है ना सभी डाइजेस्ट होके बॉडी में स्निग्धता प्रोड्यूस होनी चाहिए। जैसा कि आचार्य ने बताया, त्वक मार्दवता, गात्र मार्दवता, अधस्त स्नेह दर्शन। त्वक मार्दवता आप जानते हैं, तो ये त्वक मार्दवता एक्सटर्नल एप्लीकेशन से जो मार्दवता होती है वो मार्दवता नहीं होती है। ये इंटरनल स्नेहपान करके करके जो बॉडी इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि तो अगर तुम स्क्रैच भी करेंगे स्किन पे, तो वहां पे आपको रफनेस नहीं दिखेगा, ड्राइनेस नहीं दिखेगा। ये एक लक्षण हमें पेशेंट में ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे उत्तम मात्रा बताए। उत्तम मात्रा मतलब बहुमात्रा। बहुमात्रा मतलब तुम समझ लो, प्रैक्टिकली तुम अगर देखेंगे, फर्स्ट डे 25 ml दें, सेकंड डे 50 ml दें, थर्ड डे 75, फोर्थ डे 100, ऐसे तुम स्नेहपान करते जाते हो। अगर तुम टोटल कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट डे 25, सेकंड डे 50, तो टोटल हो गया 75 ml, और थर्ड डे 75 ml। तो इस प्रकार से जाएंगे तो शमन के लिए जो स्नेह की क्वांटिटी यूज होती है, यहाँ पे शोधन पर्पज जो किया जाता है, तो वो मात्रा ज्यादा हो जाती है, टोटली क्वांटिटी उसकी ज्यादा हो जाती है। तो शमन स्नेह और शोधन स्नेह में डिफरेंस ये है कि जो मात्रा शमन के लिए हमने 10 ml या 5 ml या 15 ml फिक्स किया है, वो डेली वही रहेगा। लेकिन शोधन के लिए ऐसा नहीं है। शोधन के लिए आपको यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू कोस्ट, और जो उसका डाइजेशन कैपेसिटी है, जीर्ण शक्ति कहते हैं, वो जीर्ण शक्ति के अनुसार हमें स्नेह को बढ़ाते जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 25 ml फिक्स किया है हमने, 25 ml डेली देना है ऐसा प्लान किया है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि 25 ml मतलब सेकंड डे 50 ml हो जाता है, वो 50 ml थर्ड डे 75 ml, थर्ड डे 75 ml उसके लिए लोड हो जाता है। कई बार वो क्या हो जाता है, इनडाइजेस्ट हो जाता है, इसकी वजह से अजीर्ण हो जाता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो चलेगा, लेकिन सडनली क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहिए। लाइक समझो कि 10 ml 15 ml 20 ml डेली थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाइए, चाहे वो 10 डेज हो 15 डेज हो। लेकिन यहाँ पे आपको तीन ऑब्जर्वेशन करनी है कि स्निग्ध लक्षण उस रोगी में क्या दिख रहे हैं। तो प्रैक्टिकली कहूंगा कि अधस्त स्नेह दर्शन, तो ये बात को तुम थोड़ा ध्यान से देखो। अधस्त स्नेह दर्शन मतलब रोगी को बॉडी में जब स्नेह पूरा सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद बॉडी स्नेह को रिजेक्ट करती है। स्नेह को रिजेक्ट करती है तो समझ लो कि जब मल प्रवृत्ति होती है, मल के साथ बाहर निकलने लगता है। वो प्रैक्टिकली अगर देखेंगे, फर्स्ट डे नहीं निकलेगा, सेकंड डे नहीं निकलेगा, थर्ड डे नहीं निकलेगा, अगर मृदु कोष्ठ है तो थर्ड डे इवनिंग या फोर्थ डे मॉर्निंग स्नेह बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है फिजिशियंस को। क्या करते हैं बहुत से प्रैक्टिशनर्स, हम देखा है कि ब्लाइंड प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कोस्ट डिसाइड नहीं करते, मात्रा डिसाइड नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर बॉडी में स्निग्धता नहीं होने की वजह से आपको आगे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्नेहपान, ये पूर्व कर्म चिकित्सा है। हम कहते हैं जो शाखाश्रित दोष कोष्ठ में आना है, ये कौन जाने, भगवान जाने, कि हमें मालूम नहीं है दोष कहाँ शाखा में जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो बस हमें ये देखना है, प्रैक्टिकली मुझे ये देखना है कि रोगी में बॉडी में स्किन में जो सॉफ्टनेस है वो हुआ है या नहीं है, और उसका स्टूल कैसे जा रहा है। स्निग्ध वर्चः, स्निग्ध मतलब सॉफ्ट स्टूल निकलना पड़ेगा, तभी हम समझना है कि इसके बॉडी में स्निग्धता आ गई है। तो ये दूसरी पॉइंट है, इस पर बहुत बड़ा वर्स्ट सब्जेक्ट है ये शोधनांग स्नेहपान के लिए। जब भी तुम्हें डाउट्स रहेंगे, तुम क्वेश्चन करेंगे तो उसके ऊपर मैं जा सकता हूँ। तो आपको डिफरेंस पता चला, शोधन रूपी के लिए स्नेहपान की मात्रा डेली बढ़ते जाएगी, और शमनांग स्नेहपान डेली मात्रा सेम रहेगी। कितने दिन तक रहेगी शमन रूपी स्नेहपान, जब तक सिम्टम सबसाइड नहीं होते तब तक मात्रा वही रहेगी। और शोधन रूपी की जो टाइम पीरियड है वो पर्टिकुलर डेज पे जाके रुक जाती है, जब बॉडी में स्निग्धता हो जाती है तब तक हमें स्नेहपान करना पड़ेगा। फर्दर जो चिकित्सा है विश्राम काल कहते हैं, वो टॉपिक आज का नहीं है, तो नेक्स्ट कभी हम डिस्कशन करेंगे। फर्दर शोधन मेथोडोलॉजी क्या है इस पर बात करेंगे। तो और एक स्नेहपान होता है ब्राह्मण रूपी स्नेहपान। तो आचार्यों ने बोला है कि कई बार रोगी का बल क्षय हो जाता है या क्षयजन्य व्याधि होते हैं। क्षयजन्य मतलब आप समझते होंगे कि धातु क्षय होता है, बल क्षय होता है, मांस क्षय होता है। तो अपतर्पण जन्य व्याधि कहते हैं इसको। इन अपतर्पण जन्य व्याधि में हम लोग स्नेहपान से चिकित्सा करनी है। तो मैं एक बात तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊंगा, ऑलिगोस्पर्मिया नाम सुना होगा। ऑलिगोस्पर्मिया ये जो है ना, ये जब सेमेन एनालिसिस करेंगे तो तुम्हारा वहां पे रिजल्ट में देखेंगे ऑलिगोस्पर्मिया में धातु क्षय, शुक्र धातु का क्षय होता है। तो शुक्र धातु का क्षय है, तो उसके लिए भी चिकित्सा स्नेहपान से ही करना है। समझ गए ना। उसी तरह कई स्किन डिसीजेस में ऐसे हो जाता है कि रोगी का बल क्षय रहता है। अगर मैं कहूंगा कि शोधन शुड बी रिपीटेड, आचार्य चरक ने बोला है बहुदोष संशुद्धि ही पुनः पुनः बहुशो अनुरक्षता प्राण। मतलब बोला है कि तो एक स्किन डिसीज के पेशेंट को एक शोधन करने से ठीक नहीं होगा, इसीलिए उसको क्या करो, स्तोकम स्तोकम दोष निर्हरणे। शायद आप समझ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा सा दोष को निर्धारण करना है। मतलब ट्रीटमेंट जो हम करते हैं शोधन, वो ट्रीटमेंट जो है वो रिपीटेडली अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए चक्रपाणी आचार्य ने बोला कि रिपीटेड शोधन करने के लिए कई रूल्स भी बताए गए। अगर वो मन कराना चाहते हैं तो पक्षात पक्षात छर्दनम, अगर विरेचन कराना चाहते हैं मासात रेचन, मतलब एवरी मंथ विरेचन करना चाहिए। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, क्योंकि
आजकल लोग इतने बिजी हो गए कि एक शोधन करने के लिए उन लोगों के पास टाइम नहीं है, तो 2 शोधन, 3 शोधन, रिपीटेड शोधन थोड़ा कष्ट हो जाता है। अगर कोई ऐसा रोगी है तो उसको बेटर रिजल्ट चाहिए, तो मेरा सजेशन आप लोगों से यह है, रिपीटेड शोधन करना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन आचार्य चरक ने दिया है और इसमें जबरदस्त रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो क्योंकि आजकल लोग ना ऐसे है कि पैसा कितना भी ले लो डॉक्टर से, लेकिन मुझे रिजल्ट दे दो। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस में गलतियां नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को भी यही सजेशन करते रहता हूँ, सजेस्ट करते रहता हूँ कि थोड़ा करो लेकिन सही करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लाइंड प्रैक्टिस, हाँ हाँ हाँ, इसमें तुम्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि शोधन रूपी स्नेहपान करना है तो थोड़ा कुछ तुम्हें इसके रूल्स क्या है, स्तने जीर्णे एवं अन्य स्नेहो अच्छा बहुहु, इन रूल को फॉलो करते हुए स्नेहपान करना पड़ता है। ठीक, इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, शमन रूपी स्नेहपान, शोधन रूपी स्नेहपान। थर्ड वन इज ब्रह्मण रूपी स्नेहपान। ब्रह्मण रूपी स्नेहपान इज नथिंग बट नरिशमेंट ट्रीटमेंट। धातु क्षय होता है, स्किन ड्राई होता है, ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज में कई पेशेंट्स को शोधन करने के लिए वो फिट नहीं होते, और कई बार पीडियाट्रिक पेशेंट्स में भी ऐसे होता है कि उन लोगों को ब्रह्मण रूपी स्नेहपान करना पड़ता है। तो आई थिंक 2 स्नेहपान आपको कन्विंस हुए होंगे ऐसा मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे ब्रह्मण रूपी स्नेहपान के लिए आचार्यों का जो डायरेक्शन है, रस मध्याद्यो अल्प मात्रा शिष्यते। रस मतलब यहाँ पर आहार रस और मांस रस कंसिडर करना चाहिए। मांस रस के साथ 5 ml, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 5 ml से 10 ml घृत को मिक्स करके खाते वक्त, क्षुधा काल में नहीं, क्षुधा काल में देंगे तो वो होगा शमनांग स्नेहपान, शमन पर्पस। ये जो हम दे रहे थर्ड वन स्नेहपान, ये जो है ये ब्रह्मण रूपी स्नेहपान, नरिशमेंट के लिए, धातु पुष्टि के लिए, तो बल को बढ़ाने के लिए। तो कहते हैं कई बार ऐसा हो जाता है, आचार्य चरक ने बोला है, वाग्भट आचार्य ने भी बोला है, कर्मणाम वमनादीनाम पुनरपि अंतरे अंतरे स्नेह स्वेदो प्रयोजनते बलाय च। अब देखो शब्द है बलाय च, बलाय च इसका मतलब कि बल को बढ़ाने के लिए। जो रोगी में शोधन के बाद बल क्षय होता है तभी भी हम ब्रह्मण रूपी स्नेहपान करना है। और कई बार रोगी वीक रहता है, ड्यू टू ओल्ड एज भी हो सकता है। ओल्ड एज में भी क्या है, सोरासिस शोधन करने के लिए अनफिट रहते हैं, तो उस टाइम पे हमें स्नेहपान करना है, ब्रह्मण रूपी स्नेहपान करना पड़ता है। ब्रह्मण रूपी स्नेहपान के लिए आहार के साथ या मांस रस के साथ तुम दे सकते हो। ये जब तुम रोगी फूड कंज्यूम करता है उस टाइम पे इन बिटवीन द फूड या फूड के साथ भी दे सकते हो। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये 3 प्रकार का स्नेहपान, देखो ये 2 प्रकार के जो स्नेहपान है, कौन से, शमन रूपी स्नेहपान, ब्रह्मण रूपी स्नेहपान, ओपीडी बेस का प्रैक्टिस। तो यहाँ पे इससे तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो स्नेहपान करने के पहले आपको क्या करना है, आम पाचन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो शोधन अंग स्नेह हो या ब्रह्मण अंग स्नेह हो, क्योंकि स्नेह को डाइजेस्ट होने के लिए बहुत जरूरी आम पाचन, अग्नि प्रदीपन होना जरूरी है। इसके लिए वो प्रैक्टिस, जब मेडिसिन जब प्रिस्क्राइब करता हूँ तो एक हिंगवाष्टक चूर्ण, जीरकादि चूर्ण या त्रिकटु चूर्ण, बहुत से ऐसे पाचक दीपक चूर्ण अवेलेबल है मार्केट पे। तो प्रैक्टिस जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं प्रैक्टिस में, तो ½ टी स्पून, मतलब 5 ग्राम बस उसके लिए, क्योंकि 10 ग्राम रोगी को वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से भी कई बार पेशेंट्स को लूज टूल्स हो जाते हैं, पाचन दीपन करते वक्त ही कई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश किया कि चिकित्सा सूत्र को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो स्नेहपान तो जरूरी है, मैंडेटरी है, इसके बिना ट्रीटमेंट तो स्किन डिसीज का होगा ही नहीं। तो वो ट्रीटमेंट करना है तो तुम प्लान करो, शोधन करना है तो आपका सेटअप अलग से होगा। सिर्फ ओपीडी बेस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ओपीडी बेस पे प्रैक्टिस करने के लिए ये गलती मत करो, डायरेक्टली स्नेहपान मत कराओ। स्नेहपान के पहले आप आम पाचन चिकित्सा करना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अ, मैं बहुत मतलब कि
20-25 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे स्किन डिसीज में ऑलमोस्ट 80% 90% मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो डर्मेटोलॉजी केसेस होते हैं। मैं कुछ सोचता नहीं है, कहते हैं कि lichen planus या पेम्पिगस वल्गारिस ऑटोइम्यून डिसीज है, असाध्य। ऑफ कोर्स आचार्य ने भी बताया क्षुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ। महाकुष्ठ असाध्य बताए, असाध्य रहने दो। आचार्य ने बोला असाध्य है तो उसको छोड़ना नहीं है। यावत स्वसति मानवः तावत प्रतिक्रिया, जब तक वो जीता है तब तक हम कोशिश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि कदाचित दैव योगेन, ये भी हमें मानना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन जो प्रैक्टिशनर्स इस मीटिंग पे ज्वाइन हो गए, जो प्रैक्टिशनर्स को मेरा सजेशन यही है कि ओपीडी बेस पे तुम मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं, मॉडर्न प्रैक्टिस करते करते कई बार तुम लोगों को ऐसे केसेस आ जाते हैं तो तुम्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ऑफ कोर्स तुम शमनौषधि देंगे, लेकिन बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आचार्य ने बताया स्नेहपान से स्किन डिसीज का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो आई थिंक मैं इस सेशन को कंक्लूड करने जा रहा हूँ कि आप शायद समझ गए होंगे शमन रूपी स्नेहपान के बारे में, शोधन रूपी स्नेहपान के बारे में और ब्राह्मण रूपी स्नेहपान के बारे में। और स्किन डिसीज कई बार ऐसा होता है रॉन्ग अडॉप्टेशन की वजह से स्किन डिसीज का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ये हमें एक्सपीरियंस हुआ है। तो जो भी तुम प्रैक्टिस करते हो, जो डायरेक्शन आचार्यों ने दिया है उसी प्रकार से हम फॉलो करेंगे तो शायद हमें फेल्योर नहीं होंगे, ऐसा मेरा कहना है। तो बस आज के सेशन में डॉक्टर विवेकानंद कुल्लड़ी ने हमें एक मौका दिया। वो एक आयुर्प्रेन्योर के फाउंडर चेयरमैन है, तो उनको बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर कृष्णा कुल्लड़ी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिशनर्स, पीजी स्कॉलर्स इस मीटिंग में ज्वाइन हो गए, जो भी डाउट्स आपको रहेंगे तो मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो डॉक्टर विवेक कुल्लड़ी, डॉक्टर विवेक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, It's a तो wonderful मैं question. Yeah, मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। yeah. तो जो भी, Questions are there. I'll take up the यस यस, question. यस यस, Okay. So let me spotlight you. Already you are spotlighted. Okay. So one question is from Dr. Amol हाँ, Gani. How अमोल can गनी, we? Yes. How हाँ can we हाँ, do Nehapana in Pitta and Kapha skin disorder? ओके। बेसिकली पित्तज डिसऑर्डर्स, कफज डिसऑर्डर्स के लिए जो टेक्स्ट में जो स्नेहपान बताया गया है, वो स्नेहपान जो है शोधन पर्पस बताया गया है। अगर पित्तज स्नेह, पित्तज स्किन डिसीज या कफज स्किन डिसीज, स्नेहपान आपको ओपीडी बेस पे करना चाहिए। तो मैं वही कहूंगा कि अमोल गने यहाँ पर स्नेहपान शमन रूपी स्नेहपान करना पड़ेगा, चाहे वो पित्तज हो या कफज कुष्ठ हो। तो जो भी कुष्ठ हो, तुम शमन चिकित्सा करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको शमनांग स्नेहपान 10 ml विथ हॉट वाटर, पित्तज हो या कफज हो। लेकिन बेसिकली जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आचार्य ने बताया वो शोधन करना ही है। अगर कोई शोधन नहीं लेना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन इज शमन रूपी स्नेहपान। जो पर्टिकुलरली मैंने तिक्तक घृता जो बोला हूँ, वो तिक्तक घृता को तुम्हें फॉलो करना होगा। तो 10 ml विथ हॉट वाटर। ओके, आई थिंक आपको कन्विंस हुआ होगा, चाहे वो पित्तज हो, कफज हो या वातज हो। तो ओके, तीनों नेक्स्ट। तीनों में तिक्त घृत ही होता है सर, या कुछ अलग अलग घृत आप यूज किए हो? हाँ नहीं, यहाँ पे घृत इंडिकेटेड अग्रौषधि जो है ये क्लेदजन्य व्याधि है। ये थोड़ा संप्राप्ति पे जाऊंगा तो ये क्लेदजन्य व्याधि है। क्लेद को जो पर्टिकुलरली तिक्तक घृतास क्लेद शोषक होते हैं, तिक्तक घृताद रक्त शोधक, आमपाचक। इसीलिए आचार्य ने अपने ग्रंथ में कुष्ठाधिकार में बहुत से घृतास का मेंशन किया है। वो तिक्तक घृतास है, चाहे वो पित्त से कुष्ठ हो या कफ से कुष्ठ हो या वात से कुष्ठ हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे यही घृतास इंडिकेटेड, अग्रौषधि कहते हैं इसको। ये तिक्तक घृतास स्किन डिसीज के लिए तुम आराम से कौन से भी डिसीज में शमन के लिए तिक्तक घृतास यूज करना चाहिए, चाहे वो पित्त से हो, कफ से हो या वात से हो। Yes, sir. ओके ओके, Sir, another question is there. Dr. Sapna Lopez, she is हाँ asking, if हाँ, Sneha Jeerna Lakshanas do not show till night or even after हाँ 24 hours on the second ओके, day हाँ in Shodhana Rupi this one. ओके, Okay. हाँ हाँ।
Then, डॉक्टर हाँ हाँ, लेट्स कंटिन्यू। then what to be done? क्वेश्चन मुझे और एक क्वेश्चन बार क्वेश्चन यही है कि स्नेह जीर्ण लक्षण अगर नहीं दिखे, रात हाँ, भर आप जैसे शोधनांग स्नेहपान कराते ना, ओके। शोधनांग स्नेहपान में अगर रात तक भी, अगले दिन तक भी जीर्ण लक्षण नहीं दिखे, अजीर्ण हो, हाँ, और ओके अधोगत स्नेह भी नहीं हो अजीर्ण की वजह से, ओके तब क्या ओके। करें? हाँ राइट, गुड क्वेश्चन। आई थिंक सपना, ये मेरी स्टूडेंट है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। तो जब शोधन रूपी स्नेहपान जब हम देते हैं, तो ये उत्तम मात्रा स्नेह होता है। कई पेशेंट्स में क्या होता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक भी यहाँ पे स्निग्ध लक्षण, वो स्निग्ध लक्षण ऑलमोस्ट लास्ट में दिखते हैं। तो जीर्ण लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो जीर्ण लक्षण तो 24 आवर्स में तो होते ही है कौन से भी रोगी में हो। तो अगर आज नहीं दिख रहे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक तो हो ही जाते हैं। तो जीर्ण लक्षण में देखना चाहिए कि शुद्ध उद्गार, अगर शुद्ध उद्गार नहीं है, तुम टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। फॉर एग्जांपल सपना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्निग्ध लक्षण, जीर्ण लक्षण अगर नहीं दिख रहे, तो वो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। वो कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है कि उसको उष्ण जलपान कराओ। उष्ण जलपान करा के अगर उसका उद्गार स्निग्ध युक्त होता है तो स्नेहपान मत करो, राइट। उसको उसी एक दिन आप लंघन करा लो, तो डेफिनेटली स्नेह डाइजेस्ट हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। जब तक स्नेह जीर्ण नहीं होता है, नेक्स्ट डे स्नेहपान नहीं करनी है। तो ऐसा तो प्रैक्टिस में हुआ नहीं है। अगर ऐसा भी हो जाता है तो नेक्स्ट डे आप असेस करो कि औषधि जीर्ण अजीर्ण लक्षण कहते हैं उसको। औषधि जीर्ण अजीर्ण लक्षण, अजीर्ण लक्षण देख लो, अजीर्ण लक्षण है तो उस दिन स्नेहपान मत करो। वेट फॉर अनदर 1 डे, उस दिन लंघन करा लो, नेक्स्ट डे आप जा सकते हो स्नेहपान के लिए। आई थिंक आपको ये आंसर सेटिस्फाइड हुआ होगा। Yes, sir. नेक्स्ट Second, नेक्स्ट। another question is from Dr. Abhirami. ओके। How to fix the dose of sneha on हाँ, first and consecutive days in Arohana Snehapana? ओके Whether ओके ओके। whether we हाँ, should see the time of digestion of sneha? हम्म, हाँ राइट। तो बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो मैं इस उसका आंसर मात्रा निर्णय, कोष्ठ निर्णय, ये एक टॉपिक होता है। थोड़ा डिटेल पे जाना पड़ेगा मुझे। तो अगर स्नेह 6 आवर्स में डाइजेस्ट होता है, इट इंडिकेट्स क्रूर कोष्ठ। 6 to 12 आवर्स जाता है, मध्यम कोष्ठ। 12 to 24 आवर्स जाता है, ये मृदु कोष्ठ। हम जनरली एक कैलकुलेशन रफली करते हैं। तो यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि हर दिन आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। जो रिसेसिव मात्रा हम देते हैं, रिसेसिव मात्रा इज मिनिमम मात्रा, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपको 30 ml फर्स्ट डे दिया, तो सेकंड डे आपको स्नेहपान करने के लिए कितने आवर्स में डाइजेस्ट हुआ है ये देखना जरूरी है। शास्त्र क्या कहता है, 2 यामा 3 यामा 4 यामा ऐसा बताया। लेकिन मैं प्रैक्टिस में देखा हूं, अगर 2 to 3 आवर्स या 4 आवर्स में डाइजेस्ट होता है तो मैं उसको क्रूर कोष्ठ कंसिडर करता हूँ। 4 to 6 आवर्स 7 आवर्स तक जाता है तो मैं मध्यम कोष्ठ करता हूँ। अगर 12 आवर्स तक भी उसको स्नेह डाइजेस्ट नहीं होता है, डेफिनेटली इट इज मृदु कोष्ठ कंसिडर करना चाहिए अभी के जनरेशन के लिए। लेकिन आचार्य ने जैसा बोला है, 2 यामा, 2 यामा यानी 6 आवर्स, तो क्रूर कोष्ठी के लिए 12 आवर्स मध्यम कोष्ठी के लिए, 24 आवर्स ये जो है ये मृदु कोष्ठी के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। कंसिडरेशन जो मैं बात बताता हूँ, 2 to 3 आवर्स डेफिनेटली इट इंडिकेट्स क्रूर कोष्ठ, 4 to 5 6 मध्यम कोष्ठ, 6 to 8 10 11 12 आवर्स होते हैं तो कंसिडर करो कि ये मृदु कोष्ठी है। मृदु कोष्ठी है तो मैंने प्रैक्टिस में बताया है कि अभी मैंने बताया कि मेल पेशेंट के लिए 20 to 25 ml डेली बढ़ाते जाइए क्रूर कोष्ठी के लिए। और मध्यम कोष्ठी है तो 15 to 20 ml बढ़ाइए। मृदु कोष्ठी है तो 10 to 15 ml बढ़ाइए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप शायद समझ गए होंगे। क्रूर कोष्ठी ही है, क्रूर कोष्ठी है 25 to 30 ml आप बढ़ाते जाइए रेगुलरली। अगर मध्यम कोष्ठी है तो 15 to 20 ml बढ़ाइए। अगर कोष्ठ मृदु है, कोष्ठ मृदु है 10 to 15 ml बढ़ाते जाइए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अगर तुम
मात्रा ज्यादा देंगे, कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा ही स्नेहपान करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि 2 to 3 hours, 4 to 6 hours, 6 to above 8, 9, 10, 12 hours तक जो है वो कंसिडरेशन मृदु कोष्ठ प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। अगर आप थ्योरी पेपर लिख रहे हैं तो एग्जामिनेशन में आपको जो शास्त्र में बताए वही लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए ऑलमोस्ट उसको अवर्स को मैंने जो बताया उसको कंसिडरेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर नेक्स्ट, क्रूड कोस्ट में जल्दी स्नेप डाइजेस्ट होता है और मृदु में लेट होता है। यस डेफिनेटली ऐसे ही होता है। क्रूर कोष्ठ में वायु का संपर्क करने से अग्नि तीक्ष्ण रहती है, स्नेह को डाइजेस्ट स्ट्रांगली डाइजेस्ट हो जाता है। कई पेशेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया विद इन 1 hour 30 ml स्नेह डाइजेस्ट हो जाता है। ओके ओके, सर, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन इज before going to the next question, I request the participants to put the questions in the Q&A जो सेक्शन है ना उसमें डालिए, तो मुझे इजी होगा, क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। चैट बॉक्स में थोड़ा मिस हो सकता है क्योंकि बाकी लोग अगर दूसरा मैसेज डालने मीन्स फीडबैक के बारे में अगर डालने लगे तो वो मैसेज ऊपर जाते हैं तो मुझे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरी पार्टिसिपेंट टू पुट क्वेश्चन इन दी Q&A सेक्शन, वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन सर फ्रॉम ओके डॉक्टर सतीश भाई। Dr. Satish Pai is a professor in JSS Mysore. ओके। So he was my junior, I believe. The Satish is there. Okay. So how to ओके, interpret Sneha Ajirna during Shodhananga Snehapana? हाउ टू How इंटरप्रेट to अजीर्ण। interpret हाँ Sneha Ajirna during Shodhananga Snehapana. ओके ओके, स्नेह अजीर्ण के जो लक्षण हैं तो आप देखेंगे तो टेक्स्ट में क्लियरली मेंशन किया है कि इट इज नथिंग बट आम लक्षण। अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, अपाका जो लक्षण दिखते हैं ये अजीर्ण लक्षण है। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अजीर्ण में स्नेह अध प्रवृत्ति होता है। इट इज नॉट सम्यक स्निग्ध लक्षण। थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पे आम के लक्षण दिखते हैं। जब अजीर्ण हो जाता है स्नेह, इंडाइजेशन हो जाता है तो आम के लक्षण दिखते हैं। वही लक्षणास हमें कोरिलेट कर सकते हैं कि अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, अपाका, शून्यतांगानाम जो आमवात में बताया है, तो वही लक्षण यहाँ पे दिखते हैं। तो उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पेशेंट्स को क्या होता है कि स्नेह अजीर्ण हो जाता है तो द्रवमल प्रवृत्ति होती है। वो द्रवमल प्रवृत्ति जो है वो स्निग्ध वर्च नहीं है। द्रवमल प्रवृत्ति अलग है और स्निग्ध वर्च अलग है। स्निग्ध वर्च में अग्निमांद्य होता नहीं, यहाँ पे टोटली अग्निमांद्य हो जाता है। समटाइम्स प्रैक्टिकली पेशेंट्स को वोमिटिंग सेंसेस होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, लूज टूल्स रिपीटेडली होते हैं। ये अजीर्ण शोधन रूपी स्नेहपान में हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इस प्रकार के लक्षण अगर दिखते हैं तो वहां पे नेक्स्ट डे स्नेहपान नहीं करना है। बेसिकली हम लोग फिर से पाचन दीपन करा के, लंघन करा के, उसका अग्नि प्रदीप्त करके देन कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक यूजुअली होता कहाँ है पे कि मात्रा अगर सडनली हम बढ़ा दिया, या स्नेहपान करके पेशेंट कोल्ड वाटर लिया, या स्नेह डाइजेशन होने के पहले ही फूड को कंज्यूम किया, इस टाइम पे स्नेह अजीर्ण होने के पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती। आई थिंक आंसर मिला होगा। Yes. Dr. Purnima is asking, will ओके, Shamananga Snehapana will be as effective as Shodhananga Snehapana? सॉरी पार्डन। शमनांग स्नेह जो है वो शोधनांग स्नेह जितना ही इफेक्टिव होगा या उसमें थोड़ा कम रहेगा? डेफिनेटली डेफिनेटली इट्स गुड क्वेश्चन अगेन। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि शोधन रूपी स्नेहपन का इफेक्ट और शमन रूपी स्नेहपन का इफेक्ट में हमें यहाँ पे मैं क्लियरली बताता हूँ कि शोधन रूपी स्नेहपन करने के बाद सिम्टम्स इंक्रीज होते हैं। वृद्धात विचंदनात् पाकात् स्रोतोमुख विशोधनात्। वृद्धात मतलब जो भी सिम्टम्स है वो कई सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। शमन रूपी स्नेहपान में लक्षण सबसाइड होते हैं और टोटली इंटेंशन अलग है। स्नेहपान में तो क्या होता है, शमन रूपी स्नेहपान या शोधन रूपी स्नेहपान, दोनों में एक कॉमन सिम्टम हमें दिखता है, त्वक मार्द होता, त्वक मार्द होता, सॉफ्टनेस ऑफ द स्किन, ये सिम्टम दोनों में दिखता है। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है कि जो शाखाश्रित दोष को कोष्ठ में लाने के लिए हमें स्नेहपान किया जाता है। तो ये कहते हैं ना ललाट स्वेद, रोमहर्ष, कुक्षी आदमा, ये लक्षण वहां पे दिखते हैं। और यहाँ पे जो चीज के सिम्टम्स है, ईचिंग है, रफनेस है, तो ये सिम्टम्स शमन रूपी स्नेहपान में सबसाइड हो जाते हैं और शोधन रूपी स्नेहपान में सिम्टम्स समटाइम्स बढ़ जाते हैं। आई थिंक वो दोनों में सेम सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। नहीं, रिजल्ट रिजल्ट whether it will affect the result, end result. ओके, रिजल्ट
देखिए, अगर शमन स्नेह से रिजल्ट मिलते हैं, शोधन शोधन रूपी स्नेहपान करके, शोधन करके जो रिजल्ट मिलते हैं, प्रैक्टिकली कहूंगा, दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिताः लंघनपाचनैः, जिताः संशुद्धिभिः न तेषां पुनरुद्भवः। ये मेरा बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस है। मैंने जिस रोगी को शोधन रूपी स्नेहपान करके, शोधन करके जो रिजल्ट्स मैंने देखा है, 3 to 4 years तक रीअकरेंस नहीं हुआ है। और शमन रूपी स्नेहपान में डिपेंड्स, वो उसकी प्रकृति, उसका बल के ऊपर, जब तक मेडिसिन रहता है तब तक सबसाइड होता है, जब मेडिसिन स्टॉप होते हैं फिर से वो सिम्टम्स बढ़ते हैं। जैसा कि काश्यपाचार्य ने बोला है कि प्रशांतानि च पुनरुत्पद्यन्ते, प्रशांतानि च पुनरुत्पद्यन्ते, मतलब जब तक वो शमनांग स्नेह रहता है तभी शमन हो जाता है। कई लोगों को अगर वो सही तरीके से डाइट फॉलो करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे, तो वो कंट्रोल में रहेगा। जो रिजल्ट शोधनांग स्नेहपान में जो मिलते हैं, लेकिन शोधनांग स्नेहपान ये एक ही ट्रीटमेंट नहीं है, फर्दर ट्रीटमेंट है शोधन। यहाँ शमनांग स्नेहपान एक इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट है। ये शोधनांग स्नेहपान इट इज पूर्व कर्म फॉर शोधन चिकित्सा है। इसीलिए मिरेकल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं तो शोधन से ही मिलेंगे। शोधन में जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, शमन में ऑफ कोर्स पेशेंट सेटिस्फाइड होता है, और जब तक वो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद मेडिसिन स्टॉप करने के बाद वो फिर से रीअकरेंस होने के चांसेस है। ड्यूरेबिलिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है शोधन और शमनांग स्नेहपान। Yes, sir. Dr. Renkaraj Medegar is congratulating you, complimenting you. That is wonderful session, sir. Thank you, thank you, And thank you very much. even Dr. Satish Pai, he is also complimenting you. Wonderful presentation, sir. थैंक यू सर, And थैंक यू। इट्स माय फर्स्ट ऑनलाइन टॉक। वह कई गलतियां हो सकती है कि मुझे उतना प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मैं ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करता हूँ, फ्रेंडली डिस्कशन होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ ये कैमरे के सामने बोलना मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, कई मिस्टेक्स हुए हैं। you are very तो much perfect. You are more थैंक यू, professional. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Another एनी question is क्वेश्चंस? there from Vaishali, Dr. Vaishali Tomar. ओके, ल्यूकोडर्मा ट्रीटमेंट होता है क्या सर? क्या ट्रीटमेंट करना ओके। होगा? अच्छा मैडम, आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो आचार्य चरक को ही ये डिफिकल्ट हुआ है। उन्होंने बोला कि 2 years ओल्ड श्वित्र कुष्ठ असाध्य बोला है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूंगा तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, मैं फैक्ट बता देता हूं। तो शोधन चिकित्सा करने से आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, बिकॉज इट इज ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से वो ल्यूकोडर्मा जो मेलनोसाइट्स वो जो डेथ हो रहा है, तो उसका कोई रीजन नहीं है। लेकिन शोधन करके तुम अगर रसायन देंगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ प्रिवेंशन बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि शोधन करके रसायन देंगे, जो अगर औषधि देंगे, उससे आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, क्यों ना वो मिडिल एज हो या इवन 50-60 years ओल्ड का हो। अगर वो स्किल मतलब लॉन्ग टर्म है, मतलब 10 years ओल्ड है, 15 years ओल्ड है, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो शोधन करेंगे तो प्रिवेंशन होगा, फर्दर स्प्रेडिंग कंट्रोल होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली कह सकता हूँ। बहुत से पेशेंट को मैंने शोधन करके शमनौषधि के साथ रसायन दिया हूँ। 3 to 6 months तक रसायन देना पड़ेगा। आई थिंक मैं समझता हूँ कि बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। Yes, sir. Dr. P.V. Prasad is thanking you Okay. for your informative and practical presentation. Dr. Purnima Thank you, sir. is Thank you. again telling that it was a great and insightful session. Dr. Amol is Thank you. telling that it is Thank best you. session, sir. Dr. Prashant Thank you Wiki very much. is also thanking you for your best presentation. Dr. Thank you, Vaishali sir. Tomar, Thank you. thank you, sir. Dr. Kimanan, thank you, coach, and Dr. Asif Ali, sir, for great session, improve our knowledge. Thank you once again, sir. Thank you. Thank you. Chandrasekhar, sir. Definitely. Dr. Chandrasekhar is also thanking you for wonderful session. And Thank you, sir. Any questions, sir? yes, sir. Still questions are there, sir. Wait, I am reading. Okay. Dr. Prajna is asking, if Okay. Vyapad is there during Shodhananga Snehapana, shall it be continued? If yes, what will be the dose of this Snehapana for the next? Just a minute, sir. Yeah, you take a sip of water. Thank you. Sir, please question repeat करो। क्वेश्चन ये है कि अगर व्यापद आ गए शोधनांग स्नेहपान के टाइम पे, हाँ, तो स्नेहपान कब से चालू वापस तैयार करना और डोज क्या होगा? ओके, ठीक है।
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद इससे पहले भी थोड़ा हाँ, आपने रिलेटेड ही आंसर दे दिया है। क्वेश्चन था। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, किस वजह से व्यापत हुआ है। व्यापत का कारण बेसिकली वैद्य है या परिचारक है या रोगी है या औषधि से हो सकता है। तो व्यापत होने का कारण क्या है ये कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद वो व्यापत को पहले ट्रीट करना पड़ेगा। तो वापस को ट्रीट करके फिर से स्नेहपान शुरू करना पड़ेगा। आपका एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट मात्रा कितना देना है। तो बेसिकली मैं कहूंगा कि 3 डे स्नेहपान किया है, 4th डे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो मैं कहता हूँ 4th डे कॉम्प्लिकेशंस हुए है तो 5th डे आगे ट्रीटमेंट नहीं करनी है। वो चेक करना है कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। उसके बाद फिर से वो अग्नि को प्राकृत करके, तो कहाँ से आपने स्नेहपान स्टॉप किया था, आई थिंक ना, समझो कि 90 ml को आपने 3rd डे दिया था, 4th डे 120 ml दिया, तो 120 ml दिया तभी कई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए, व्यापत हो गए। तो 4th डे का डोज नेक्स्ट ये कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करके 4th डे का डोज कंटिन्यू करना चाहिए। फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3 डेज प्रॉपर स्नेहन हुआ है बॉडी में। तो आगे हम 4th डे से कंटिन्यू करना चाहिए। आई थिंक ऑफ द आंसर। Yeah. Dr. Sapna is again asking, should we ओके conclude Costa on the basis of Hrishikesh Matra only, or can we increase it to 40 ml also for deciding the Costa? ओके, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर सपना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो डे 1 हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं कोस्ट डिसाइड करने के लिए मात्रा 30 ml देके हम जीर्यमान लक्षण जीर्ण लक्षण देखते हैं, राइट। जीर्यमान लक्षण में जीर्यमान लक्षण जो है, सॉरी, शिरोरुज, भ्रम, क्लम, साध, अरति, निष्ठिव, ये सभी लक्षण तुम देखते हो ना डे 1 पे। तो यहाँ पे डे 2 पे भी तुम ऑब्जर्व करना है, डे 3 पर भी ऑब्जर्व करना है। जीर्ण लक्षण, अजीर्ण लक्षण एंड सम्यक जीर्ण स्निग्ध लक्षण डेली आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, फाइनली दिखेंगे सम्यक स्निग्ध लक्षण। तो डे 2 में आपको ऐसा नहीं है कि, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। तो 1st डे यू कंसिडर्ड एज क्रूर कोस्ट, क्रूर कोस्ट समझ के आप डोज ज्यादा देते हो, राइट। तो उस दिन 2nd डे, तो 1st डे 30 दिया, 2nd डे आप 60 ml दिया, 60 ml समटाइम्स उसको डाइजेशन होने में लेट हो गए, तो यहाँ पे कोस्ट तुम्हें मिसगाइड करता है। इसीलिए आपको डेली वहां पे जीर्यमान लक्षणास और डेली कितना ml दिया है और कितने देर तक वो डाइजेस्ट हो रहा है उसके ऊपर तुम्हें 3rd डे का डोज फिक्स करना पड़ेगा। 2nd डे आपने 60 ml दिया, तो 3rd डे तुम्हें लगता है कि वो स्नेह डाइजेशन होने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है, तो तुम्हें 3rd डे 90 ml नहीं देना है, तो 10 ml या 15 ml उतना ही इंक्रीज करके मैनेज करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे ये आंसर आपको सेटिस्फाइड हुआ होगा, मैं समझता Yes. Dr. Dhanasri is asking, हूँ। ओके which type of Langana have to be done if Sneha Jirna Lakshanas are not seen on 2nd day? ओके, How to बेस्ट। assess Samyak Langana Lakshana? यस डेफिनेटली, समझ लो कि आरोहण क्रम स्नेहपान करा रहे हैं, आरोहण क्रम स्नेहपान करते वक्त 4th डे आपको अजीर्ण लक्षण दिखते हैं, तो अजीर्ण लक्षण दिखते हैं तो नेक्स्ट 5th डे स्नेहपान नहीं करना चाहिए। ऑन 4th डे आपको अजीर्ण हुआ है तो उसी दिन से लंघन करना है, पर्टिकुलरली उपवास रूपी लंघन करना है। उपवास रूपी लंघन आप करेंगे, प्रैक्टिकली कहूंगा तो उसको उस दिन कुछ भी आहार नहीं देना चाहिए जब तक उसको क्षुधा प्रवृत्ति नहीं होती। अजीर्ण हो गया तो अजीर्ण के लक्षण देखना चाहिए। अजीर्ण हो गया समझ लो कि आम प्रोड्यूस हुआ है, आम कंडीशन में नेक्स्ट डे स्नेहपान नहीं करना है। वो अजीर्ण को ट्रीट करने के लिए आपको जस्ट उष्ण जलपान कराना है बस, और क्षुधा रूपी उपवास रूपी लंघन करना चाहिए। तो मतलब उस दिन आहार कुछ भी नहीं देना चाहिए, चाहे तो तुम उष्ण जलपान रिपीटेडली कराते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा, तो उपवास रूपी लंघन से ही वो अजीर्ण जो हुआ है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे से आपको स्नेहपान करना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Another question ओके is from Dr. Asma. ओके, She is asking, what is the reason behind developing urticaria rashes during Shodhananga Snehapana and how to treat this condition? एट द टाइम ऑफ आरोहण क्रम स्नेहपान। हाँ, शोधनांग स्नेहपन करते वक्त अगर अर्टिकेरिया हो गया तो हाँ, क्यों होता है, और उसका उसका कैसे ट्रीट करना, उसको कैसे ट्रीट करना? देखो आपने क्वेश्चन जो पूछा है, ये अर्टिकेरिया एक डिसीज है, ओके, ये एक एलर्जिक कंडीशन है।
तो यहाँ पे स्नेहपान से एलर्जिक अगर समझो कि वो पेशेंट ही अर्टिकेरिया का है, तो स्नेहपान करने से अगर अर्टिकेरिया बढ़ता है तो समझ लो कि उस पेशेंट को वो शो स्नेहपान के लिए अनफिट समझना चाहिए। तो उस कंडीशन में तुम स्नेहपान करेंगे, अर्टिकेरिया ट्रिगर होता जाएगा। तो ये समझना है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है ऐसे केसेस में। अगर स्नेहपान करते वक्त अर्टिकेरिया पहले से नहीं था, स्नेहपान करते वक्त सेकंड डे थर्ड डे अगर अर्टिकेरिया के सिम्टम्स अगर दिख रहे, तो समझना कि ये स्नेह है उसके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस में अगर तुम्हें ऐसे केसेस आएंगे तो आगे स्नेहपान मत करो, उसके लिए तुम एक सद्य शोधन करा लेंगे तो ठीक रहेगा। सद्य विरेचन पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ऐसा है कि स्नेहपान करके आगे तुम विरेचन कराना चाहते हो तो स्नेहपान तो नहीं होगा, तो स्नेहपान टोटली स्टॉप कर देना चाहिए। फिर उसको अर्टिकेरिया है तो डायरेक्टली हम सद्य विरेचन कर लेना चाहिए उसका मैनेजमेंट। और प्रैक्टिस में मैं कहूंगा कि अर्टिकेरिया इतना सीवियर हो गया तो जरूरी पड़ेगा एंटी हिस्टामिन्स देके उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो वो स्नेहपान के लिए अनफिट कंसिडर करना है नेक्स्ट। Yes, sir. So many of people are congratulating you, and थैंक यू वेरी मच। they are saying that it was wonderful session, and you are very more professional in answering all the questions as well as presentation also. थैंक यू सर, Okay. थैंक यू, थैंक यू। And till any questions are there, we'll wait for another 5 minutes, sir. Then we can. यस, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम। Yes, sir. And before, if any questions could come, I request all of you to, if you are watching this, because of course you people are very much live here, but as I'll be uploading this particular session in the YouTube, in this video, so if you are watching on YouTube, I request you to like it, comment it, and share your particular learnings, and see that it should be shared to all the knowledge seekers. By that, you will be contributing to the science. You will be contributing to the growth of our community. So I request all of you to subscribe to my YouTube channel, Ayurpreneur Academy. Okay, Ayurpreneur Academy YouTube channel is there. I believe almost everybody, the people who have joined this session by registering this session must have followed the instruction, and you must have joined even WhatsApp community also, WhatsApp group also of a Friday Ayurpreneur Mastermind session WhatsApp group. The advantage of being in that group is, in future, whenever all these FAMs will be happening, every Friday, whatever sessions will be happening, you will get direct access to that. You need not to register repeatedly. You will be getting the link even in your app. If you have already downloaded my app, Ayurpreneur Lifestyle Hub. If you have not downloaded, I request you to download Ayurpreneur Lifestyle Hub app, which is available for both Android as well as iOS. You can download it, and you can, and if you are registered, you will get access to all the feed section, message section, and workshop section. So you'll be coming to what will be the next upcoming workshop and the sessions, and you'll be getting access free to that, or everything which will be free, which will be getting access. You need not to repeatedly register. And I request you to subscribe to my YouTube channel, Ayurpreneur Academy, to, even if you miss any of the session, you can watch it on YouTube. Okay. So again, एनी क्वेश्चंस? no, not just a minute. I'll check in question and answer session. Yeah. Okay, Dr. Satish Pai is asking, during Snehapana, what other treatments can be given without any complications? सॉरी, एक मिनट सर, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ. ओके। ओके, सो सतीश भाई पूछ रहे हैं, स्नेहपान तो हम हाँ, करेंगे, जैसा कि आई थिंक ही मस्ट बी रेफरिंग टू शमनांग स्नेहपान. ओके, ओके। शमनांग स्नेहपान आप करते वक्त दूसरे हाँ, कौन सा ट्रीटमेंट हम साथ में दे सकते हैं, विच में नॉट ओके कॉम्प्लिकेट? ओके 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 ओके। हाँ, शमन रूपी स्नेहपान इटसेल्फ शमन औषधि। तो यहाँ पर तो जब तक शमन रूपी स्नेहपान, जैसा मैंने बताया, तो क्षुधा काले मध्यम मात्रा शिष्यते। क्षुधा काल में तो हम स्नेहपान करते हैं, राइट। स्नेह डाइजेशन होने के बाद हम फूड देते हैं, उसके बाद तुम शमन औषधि तुम प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट।
क्षुधा काल No, में हम he added further, sir. हाँ It is for Shodhananga Snehapan, he is asking. शोधनांग स्नेहपान। Shodhananga Snehapan में, हाँ, हाँ हाँ, हाँ, नहीं 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 सर, नेवर नेवर सर। शोधनांग स्नेहपान में अच्छे पे स्नेहपान किया जाता है, उसमें कुछ भी शमन औषधि यूज नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इसका जो इफेक्ट होना चाहिए, अभी धातुगत पाचन होना चाहिए, वो सही नहीं होगा। इसलिए शोधन रूपी स्नेहपान में कुछ भी शमन औषधि नहीं देनी चाहिए। इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, शोधन रूपी स्नेहपान में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ना आप लोग स्नेहपान को स्टॉप करके, तो कुछ तुम अकॉर्डिंग टू कंडीशन आयुर्वेदिक शमन औषधि दे सकते हो, या मॉडर्न मेडिसिन भी देके उसको ठीक कर सकते हो, राइट? yes, sir. I think Dr. Satish has got the answer. ओके Dr. Sushil is asking. ओके Okay, no, so Satish again he has got query. Okay, ओके especially it's not only the what we call Kushta along with patient Kushta with other conditions. He is specifically हाँ asking, for example, if the patient is with requires Katibasti. Okay, हाँ if the हाँ condition patient is having the condition where he may be requiring Katibasti also, and at the हाँ। same time, that both can be conducted at the same time, or only Shodhananga the Snehapana should be given and Shodhan then नो Katibasti take out of it. नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। यहाँ पे इस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर तुम शोधन करते हैं तो तुम प्योरली शोधन चिकित्सा पे कंसंट्रेट करना है। उसके बाद तुम चाहे कटिबस्ती करो या बहिर्परिमार्जन चिकित्सा जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन शोधन के टाइम पे कटिबस्ती भी, बहिर्परिमार्जन चिकित्सा भी करेंगे और स्नेहपान भी करेंगे। ये अभ्यंतर स्नेहपान एज वेल एज बाह्य स्नेहन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इस पे हम ये चिकित्सा कर नहीं सकते। इसीलिए आपको शोधन पहले करके लेना है। शोधन कंप्लीट होने के बाद अगर बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तुम कटिबस्ती सिस्टिक चाली जो कुछ भी ट्रीटमेंट्स है वो कर सकते हो। नहीं, वही उनका वही प्रैक्टिकल दिक्कत ये है ना सर, पेशेंट्स बहुत दिन तक आते नहीं हमारे पास, इसलिए वो एक ही साथ साथ में साथ चलता है, क्या पूछ रहे हैं सर? हाँ सर सर, नहीं नहीं नहीं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं समझ गया उनका क्वेश्चन। तो yes, तो एक काम कर सकते हैं सर आप, मॉर्निंग आवर्स में जो स्नेहपान करते हैं, स्नेह जीर्ण होने के बाद इवनिंग टाइम पे यू कैन अडॉप्ट कटिबस्ती। वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। स्नेह कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद इवनिंग आवर्स में 6-7 o'clock या 8 o'clock तुम उसको बिफोर मील कटिबस्ती चिकित्सा एक एडिशनल ट्रीटमेंट तुम कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ डाइजेशन ऑफ स्नेह तुम कटिबस्ती का हो या कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर सम जीर्ण लक्षण ऑफ स्नेह तुम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कर सकते हो। yes, sir. Dr. Sushil is asking, which matra advised for Shodhana Shamana? Shodhana Shamana. The question is not clear. Anyway, yes, already sir has answered this one. Lot of सर मेरा especially- आज के सेशन में मेरा यही कंसंट्रेशन था। हाँ, सब लोगों को मुझे यही कन्विंस करना था। शोधन की जो मात्रा होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होती है, शमन की मात्रा और ब्राह्मण रूपी स्नेह की मात्रा वो सेम रहती है, तो उसमें वेरिएशन नहीं करनी है। जो डोज तुम शायद ही फिक्स मस्ट करते हैव हो। मिस्ड इट। आपने बोला शमन तो 10 ml 5 से 15 या ml या तक या आप दे सकते या हैं शमनांग या 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 स्नेह। या और यस शोधनांग यस के लिए हर्षेसी मात्रा से चालू करना है हर रोज। हाँ मेल पेशेंट के लिए 25 ml यस। बढ़ाना है, फीमेल ओ पेशेंट के लिए 20 ml बढ़ाना है। 15 to 20 ml बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाना है। प्रैक्टिकली नो कॉम्प्लिकेशंस। Yes, yes, yes. Okay, I think socially must have missed because sir has many times repeated in the session. Okay, and again we answered it. Okay. Dr. Purnima is thanking me for bringing you, sir, on this session. थैंक यू थैंक। आई थिंक डॉक्टर This पूर्णिमा उंडी। no, she ओके is no, no. Who is the surname is not there. Only Dr. ओके Purnima. ओके 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 ओके, थैंक यू। So it's a wonderful session, sir, and I thank you on the behalf of my Ayurveda Academy and Ayurveda Lifestyle Hub. And in future also, I expect that you will be delivering you will be means sharing your clinical experiences with our community members. And I request all of you to stay connected with Ayurveda Academy, and so that I'll be bringing many people. Even many times I'll be I'll be taking sessions on especially marketing, branding, then creating entrepreneurial ideas. All those things I am speaking because I am focusing more on that. Of course, my Shalya topics may be there. Some revelations from the Ayurveda, what I have understood, that I'll be bringing in, and I'll be bringing in lot of experts from other field, not only from Ayurveda.
I may bring from technology people to help you to develop your own technological, what to call the uh, strategies for your expanding your clinical reach and all those things. So I request all of you to stay connected and promote this academy as if it, because it is your own academy, and I am giving it free of cost. By January 25, maybe this will convert into a paid membership. Till then, you can enjoy, and even monthly one session I can give free to all the people who are with particular this community who have joined with all the memberships. And next week, it's a very wonderful session is going to happen. How to go online with your clinical practice as well as other things. So I'll be bringing the experts from the other community, other platforms. So I wish you people will join back and you'll bring a lot of people, your own friends whom you want to help to grow Ayurveda, to make means as a monetization money machine, and they'll get confident. And which is our mission is to empower all the Ayurveda like stakeholders or the professionals and the doctors to use Ayurveda, make Ayurveda as a money machine for them, okay, money making machine for them. And I don't feel ashamed of that, or I don't feel shy to tell that we should make money. Of course, making money word may seem different, but earning money is very much different, and we should earn. And it's not to with the purpose of earning money, but it is to make your significant life, your professional life significant using Ayurveda. And by that, you can be remembered and it will become significant and you'll become irreplaceable in the society. And that is what our mission, to empower you to have that social significance and professional significance. Everybody is making money. Even with allopathic cross practice, you people are able to make a lot of money. Even many of my classmates have made crores of rupees with allopathic cross practice. Only purely allopathic cross practice, I am telling. GPs. But significance, becoming irreplaceable, beating the competition, staying in a blue ocean, that makes the difference, and that will give you time freedom as well as financial independence, and you'll get the security. You won't feel competition. So that is our vision. So thank you all of you for joining this session, wonderful session. I thank again Vaishpal sir for your wonderful deliberations. Dr. Thank you, sir. Thank you. Dr. Sudhir is congratulating you and he's thanking you and me. He's my Thank classmate. you. He is an integrative practitioner, sir. Dr. Sudhir Vaidya. He runs his allopathic practice as well as integrated with the Ayurveda. And that's Okay. even I will bring him some other session. He has set up Okay. Panchakram setup and in Gangavati, and he is doing a wonderful job. And Dr. Sapna is thanking both of us again. Thank you. Okay. Thank you very It's much. always for all the stakeholders of Ayurveda. Okay, we are there and we'll be happy to serve you people and empower you people. Okay. So Okay. take care of everybody, and I would like to end up this session, sir. Thank you once again, sir. Ashipali, sir. Thank you. On Thank you behalf very of much. my co-founder also. Okay. And our academy and all the members of the academy. Okay. Okay. So this Okay. will be up in the YouTube by Monday or Sunday. Okay. So this you can share. I'll share the links. You can visit Ayurpreneur Academy YouTube channel, and you can suggest your friends to visit this YouTube channel, and you can see the video who have missed it. Okay. So if you are already watching on the YouTube, you join Ayurpreneur Academy. Okay. Thank you one and all. See you. Thank you. Next. Thank you. Yes. Okay. Thank you.